शायद कुछ लोगों ने ये चीज़ ना सुनी हो, बट हाँ, हो सकता है कि जिन लोगों ने क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग का नाम सुना होगा। इमेजेस भी रैंक करती हैं, ठीक है? अब ये इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? So good morning, everyone. Welcome you all to today's session of free masterclass on the SEO, and we'll be explaining the topics. We'll be taking you deep into the topics of the SEO world. Before we move ahead, first I'd like to introduce the Digital Edge Institute and what it's all about and how we train our students in the Digital Edge Institute. So, Digital Institute is a premier digital marketing institute dedicated to shaping future-ready professionals, renowned for its highest placement record. We offer comprehensive course design to equip students with cutting-edge skills in digital marketing. Our expert faculty, industry-focused curriculum, and real industry exposures ensures unmatched training quality and practical learning. Now, talking about why Digital Edge. I know there are a lot of students from the North India, so I'll keep later on. I'll use both the language Hindi and English if you're not comfortable with English. So, Digital Institute, at Digital Institute, our digital marketing curriculum is meticulously crafted to align with the global industry standards, ensuring top tier education for our students. Our seasoned industry experts provide invaluable insights and mentorship guiding students towards success. With strong industry tie-ups, students can gain real-world experience through internship, seamlessly bridging the gap between the academia and the industry. Additionally, our dedicated placement cells work tirelessly to equip every student with the necessary tools and support to ensure employment opportunity that match the aspirations and skill sets. Now talking to our advantage, why Digital Edge? As I explained, the global industry curriculum. Our industry curriculum aligns with global industry standards, which offers relevant and up-to-date education for aspiring professionals worldwide. Now, while talking about the global industry curriculum, क्या एडवांटेज है ग्लोबल इंडस्ट्री करिकुलम का? आप जब किसी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को आप करते हो जो कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया के या किसी कंट्री के स्पेसिफिक नीड या मार्केट बिहेवियर के हिसाब से स्टडी करते हो, तो आप लोकलाइज्ड वर्क करने के लिए एलिजिबल होते हो। हमने अपने कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप इस कोर्स को करने के बाद किसी भी कंट्री में आप काम कर सकते हो, किसी भी कंट्री के क्लाइंट के लिए आप काम कर सकते हो। एंड ये डिफरेंस होता है जब आप पढ़ेंगे डीप इन जाएँगे डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि हर कंट्री की मार्केटिंग बिहेवियर अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, स्ट्रैटेजी अलग होती है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ कुछ कीवर्ड रैंकिंग या इस तरह की चीज़ें नहीं, यू हैव टू मेक ऑल द स्ट्रैटेजी टू रैंक दैट कीवर्ड और टू मेक योर क्लाइंट ऑन द टॉप ऑफ द रैंकिंग। यू नीड टू हैव आइडिया कि कैसे हम स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं, वहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी बिहेवियर क्या है, उनका पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, हम प्रॉपरली उनके लिए कोई स्ट्रेटजी या कैंपेन या एसईओ नहीं कर पाएंगे हम, राइट? Apart from the next, we have senior industry trainers. All the trainers in Digital Edge Institute are from industry. We don't hire anybody fresher to train you people. सीनियर इंडस्ट्री को ट्रेनर्स को हम इसलिए हायर करते हैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक कोर्स नहीं होता है जहाँ के आपने कुछ टॉपिक्स स्टडी किए हैं। इट्स अ रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। क्योंकि अगर आपको गूगल ऐड चलाना आता है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपको अगर आपको गूगल ऐड चलाना आता है, बट प्रॉब्लम्स जब फेस होती है, देन हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, हाउ टू एनकाउंटर विद दोज प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद द सॉल्यूशंस, ये सिर्फ सीनियर इंडस्ट्री के लोग ही आपको बता सकते हैं। कोई भी फ्रेशर ट्रेनर होगा, उसने चूँकि टॉपिक्स तो पढ़ रखा है, टॉपिक एक्सप्लेन कर देगा आपको, बट जो प्रॉब्लम्स आएँगी, जहाँ पे इश्यूज़ क्रिएट होंगे, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। So that's why we hired a senior industry trainers so that they can guide you properly, they can train you and they can handhold you for the real problems. आपको real situations दिए जाएंगे जहाँ से आप उनको सीखेंगे। Now we have live projects. All the projects that will be given to you will be live projects. We are working under the Trine for IT services. हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एसईओ के और डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करती है। हमारे पास बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमें किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है।
और आपको सारे जो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे वो लाइव होंगे, उन पे आप काम करोगे, सीखोगे, आप मिस्टेक्स करोगे और उसकी रियल टाइम सॉल्यूशंस आप लेके आओगे। अगेन नेक्स्ट इज लाइक रियल इंडस्ट्री इंटर्नशिप। एज आई टोल्ड यू, वी हैव इन हाउस टीम जहाँ पे हम बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, हमारे पास रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड विल शेयर ऑल द प्रोजेक्ट्स यू विथ यू। आपको उस कंपनी से के साथ उस प्रोजेक्ट्स पे काम करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करके सीख पाओगे कि किस तरह से रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, guaranteed placement support. Our team, the placement support team, they will work tirelessly with you to ensure that you get proper placement opportunity. आपके कोर्स में प्लेसमेंट प्री प्लेसमेंट मॉड्यूल्स भी इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है, जिसमें कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, सीवी राइटिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू स्किल्स, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। एंड टुवर्ड्स एंड द प्रोग्राम हम इंश्योर करते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। हमारे अभी तक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वी हैव प्लेस्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स in last 12 years. Coming to the next topic, there are two very important things that we have included in our course. The first is artificial intelligence. And talking about the artificial intelligence, आज के डेट में everybody talks about artificial intelligence. And what they assume about AI is chat GPT और कुछ इमेज क्रिएट कर लेना, कुछ वीडियो बना लेना, इसको वो AI समझते हैं, कंटेंट क्रिएट कर लेना, बट दिस इज नॉट द AI. दिस इज जस्ट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द AI. बहुत 10% भी मैं नहीं बोलूंगा कि AI का है। बेसिक क्या यूज है AI का, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं किसी कंपनी के लिए या जहाँ हम काम कर रहे होते हैं उनके लिए कोई स्ट्रेटजी डिजाइन कर रहे होते हैं, तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको पहले डेटा चाहिए। डेटा के ऊपर आपको एनालाइज करना है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मुझे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट का जियोग्राफिकल रेंज क्या है। मैं इंडिया की बात लेके चल रहा हूँ कि इंडिया में किस स्टेट में या स्पेसिफिक स्टेट के किस सिटी में ज़्यादा लोग हैं जो ब्रांड अवेयर हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा सेल वहाँ हो रही है, किस एज ग्रुप में हो रहा है। अगर ये फीमेल प्रोडक्ट है तो फीमेल के किस एज ग्रुप में जा रहा है, क्या इनकम ग्रुप है उनका जिसमें ये पूरी सेल हो रही है। अगर आपको इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो आप एक अच्छी स्ट्रेटजी डिजाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब एड चला रहे होते हो तो देयर आर लॉट ऑफ मनी विच इज गोइंग इनटू द प्रोसेस। और आप चाहे आपका क्लाइंट हो या फिर आप खुद अपने लिए कर रहे हो बिजनेस या आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है देन यू विल वेस्ट ऑल योर मनी। आप पैसा लगाते जाओगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सो टू फेच अ गुड रिजल्ट, अच्छा रेवेन्यू लाने के लिए आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी है। एंड नाउ AI कैन हेल्प यू इन एनालाइजिंग ऑल द डेटा। AI इज अ वेरी वास्ट थिंग जो कि आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप उसको डेटा एनालाइज करोगे और किस तरह से एक अच्छी स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकते हो। सो वी आर फार ahead of the other institutions if you talk about कि हम सिर्फ आपको चैट जीपीटी और ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं सिखाएंगे, आपको हम उससे बहुत आगे आपको डेटा एनालिटिक्स सिखाएंगे, स्ट्रेटजी डिजाइनिंग सिखाएंगे इसके अंदर। नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन अबाउट द रियल इंडस्ट्री इंटर्नशिप, दिस आर एज, क्योंकि हमारी अपनी इन हाउस कंपनी है, हमारे पास बहुत क्लाइंट हैं, वी हैव नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स आल्सो, सो वी कैन गिव यू द लाइव प्रोजेक्ट्स और आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे सीखोगे। सो यू विल सी, वी विल लर्न हाउ द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड। आपके पास रियल चैलेंज आएंगे, रियल प्रॉब्लम आएंगे एंड यू विल लर्न हाउ टू एनकाउंटर एंड हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। Yeah. So now, how this program will help you? This is very much important thing because we have designed a program to cater every people who either they are looking for a job or they are a business owner or they are social media influencer or freelancer or e-commerce business owner. So we'll help everyone with this program. So like even if you're trying to get a new job, अगर आप first timer हो, fresher हो and looking for a job or already you are into the work, आप काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आना चाहते हो, then this program will help you. हम इसके थ्रू आपको पूरी तरह से नर्चर करेंगे from very basics to very advanced. We'll train you on how you can get a new job or how you can migrate from your current job to the new domain of the digital marketing. Again, अगर आप बिजनेस ओनर हैं एंड यू आर स्टार्टिंग अप और ऑलरेडी आपका बिजनेस है, चल रहा है एंड नाउ यू वांट टू इंक्रीज योर रेवेन्यू,
So as you all are aware, the world is now on digital platform. अगर कोई business या कोई ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, मीन्स दे डोंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। और आने वाला टाइम ऐसा होगा, आप खुद से भी एक्सपीरियंस करते हो कि एक टाइम था जब हर चीज के लिए हम शॉप्स जाया करते थे, मॉल्स जाया करते थे। अब हम मॉल्स के अंदर फुटफॉल कम हो चुकी है, शॉप्स में फुटफॉल कम हो चुकी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑर्डर थिंग्स ऑनलाइन। So you have to be either it's a product or it's a services. You have to be present online. And if you're not online, means you're losing a big part of your business. And so in this program, we'll teach you like how to present yourself in the online platform, the online platform, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, उसकी ऑर्गेनिक एंड पेड मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। नाउ अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर हैं और आपने अपना प्लेटफॉर्म तो क्रिएट कर लिया है, बट नाउ यू आर नॉट गेटिंग एंगेजमेंट्स, यू आर नॉट गेटिंग लाइक फॉलोवर्स और पीपल हु आर बाइंग योर सर्विसेज, देन दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू कि किस तरह से आप अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने चैनल्स को, प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज कर सकते हैं और रेवेन्यू कमा सकते हैं उससे। क्योंकि एंड गोल हमारा यही होता है कि हम रेवेन्यू अर्न करें। तो हमारे इस प्रोग्राम में कंप्लीट एक सेक्शन है जिसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग और किस तरह से इन्फ्लुएंसर क्रिएट इंक्रीज करते हैं, सारी चीजें हम सिखाते हैं। Now, there is one more category. Nowadays, it's increasing day by day. Lot of people, lot of basically working professionals, they don't want to go to office or work under structure. फिक्स स्ट्रक्चर में वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं कि आप घूमते हुए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साथ में आप अर्न भी कर रहे हैं। सो देयर इज अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी फॉर दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जितना सिंपल टर्मिनोलॉजी सुनने में लगता है, इतना सिंपल नहीं होता है एक्चुअली। इसमें आपको बहुत चीजें सीखनी होती हैं कि नॉट ओनली द टिप्स एंड ट्रिक्स और जो की स्किल्स हैं वो नहीं, बल्कि आपको क्लाइंट्स कैसे एक्विजिशन करनी है, अपने आप को कैसे प्रमोट करना है उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां से आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आप बिडिंग कैसे करोगे, दूसरों से बेहतर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे। तो दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमने इस कोर्स में वो भी इंक्लूड किया कि आप फ्रीलांसिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट अगेन बट नॉट द लीस्ट इज द ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड। हमें लगता होगा ई कॉमर्स का मतलब क्या, मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, दैट्स इट, हमारा बिजनेस शुरू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन व्हेन वी वर इनटू द फिजिकल वर्ल्ड, आप देखते थे कि हमारे पास ऐड होते थे बहुत तरीके के, हम होर्डिंग्स लगाते थे, बैनर्स लगाते थे, हम पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराते थे, बिकॉज वी हैव टू बी ऑन द टॉप। हमारी विजिबिलिटी टॉप पे होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन अर्न रेवेन्यू आउट ऑफ दैट बिजनेस। सिमिलरली अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, मैं अमेजॉन एग्जांपल लेता हूं, अगर कोई शूज बेच रहा है तो शूज में ही कम से कम 10,000 सेलर होंगे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे, और पूरी कंट्री में इतने लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। व्हाई योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्यों बिकेगा? वो तभी बिकेगा जब आप अमेज़न के फर्स्ट पेज पे टॉप 10 लिस्टिंग पे आ रहे होगे। सो अगेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, वेदर मैं बात करूं रिटेल ई कॉमर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म या अलीबाबा, अली एक्सप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पे, आपको टॉप पे होना, किसी बिजनेस में आपको टॉप पे, आपका प्रेजेंस आपके टॉप पे होनी चाहिए। व्यूअर्स आपको देखेंगे, जिस तरह से हम एसईओ में टॉप फर्स्ट पेज पे आते हैं, तभी आपकी सेल होगी, प्रोडक्ट सेल होगी। तो वहां भी आना, उनकी अपनी एक एसईओ होती है कंप्लीटली। अगर मैं अमेज़न की बात करूं तो अमेज़न की अपनी एसईओ होती है। आप सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करते, उसके लिए कीवर्ड्स कैसे डालते हो, उसके लिए डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखते हो, कैसे उसको रैंक कराते हो, ये पूरी स्ट्रेटजी होती है। तो इस प्रोग्राम में हमने पूरा इंक्लूड किया है कि आप ई कॉमर्स में किस तरह से अपने प्रोडक्ट को टॉप में ला सकते हो और अपनी रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हो। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम, is designed in such a way that it will help everyone, whether you are a job seeker or business owner or influencer or freelancer or a e-commerce owners. So this program will help everyone. Now, advantage of digital edge programs. We have designed this program in such a way that anybody from any corner of this world can take advantage of this world. First, all the sessions will be in the live mode. हमारे सारी सेशंस जो होती हैं ऑनलाइन होती हैं, लाइव मोड्स पे होती हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। Somebody, we have an office training center at the Noida, Delhi NCR. So if someone are present in the Delhi NCR, they can come for our physical classes. Otherwise, we have live online sessions for everyone, जहाँ पे हम आपको लाइव पढ़ाते हैं। इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, स्मॉल बैचेज होते हैं,
और आपको जो ट्रेनर्स हैं वो लाइव बताते हैं, नॉर्मल क्लासरूम की तरह ही ट्रेनिंग होती है। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन डिस्कस योर कलीग्स, बैचमेट्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑल द क्लासेस व्हिच इज लाइव, ये रिकॉर्ड भी होती हैं एंड दे आर मेड प्रेजेंट्स, दे आर प्रेजेंटेड ऑन द LMS। 24/7 LMS हमारा है, इस पे सारे वीडियोस, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके PPT नोट, सब चीज अपलोड होती है। आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हो और उसको आप स्टडी कर सकते हो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है, आप नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस कर सकते हो। आज के टाइम में जहाँ पूरी वर्ल्ड डिजिटल जा रही है, तो ये जो हमने डिजाइन किया है प्रोग्राम, ये परफेक्टली फिट है आपके लिए, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन क्लासेस जाते हो, उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, आपके पैसे लगते हैं इन ट्रेवलिंग के, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्किल एनहांसमेंट के लिए। नाउ वी आर ट्रेनिंग यू on the real tools, we are training you on the real tools, जिसमें कि आपको सारे वो टूल्स हम सिखाते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में यूज हो सकते हैं। और चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, या आपको रिसर्च हो, या आपको ऑप्टिमाइजेशन हो, सारी चीज आपको रियल टूल्स का एक्सेस देते हैं और उस पे आप ट्रेनिंग देते हो। अगेन द रियल इंडस्ट्री ट्रेनर्स आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर आल्सो। And last but not the least, again, guaranteed placement support. So our team will ensure that you get a proper place. If you are looking for a job, it's 100% surety that you will get a job. आपको इंटरव्यू हम अरेंज करके देंगे, आपको मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दी जाएगी जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती। अनलिमिटेड इंटरव्यू सपोर्ट्स हैं और हमारे अभी तक सारे बच्चे प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इन हाउस बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। इसके अलावा हमारे 12 साल में बहुत सारे इंडस्ट्री से कनेक्ट हैं। दे प्रीफर आवर स्टूडेंट्स बिकॉज़ हम उसको उस तरह से ट्रेन करते हैं क्योंकि कोई अदर इंस्टीट्यूट नहीं करता है। सो अगेन, आवर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज गेटिंग प्रेफरेंस बाय द इंडस्ट्री। Now, talking about the present market scenario, sorry, if I talk about the jobs available in the market, you can see the Naukri data. It's around 1,60,830 vacancies. They are available on the Naukri.com, and there are multi-mode platforms also. I'm taking few examples. And talking about the LinkedIn, there are around 38,000 plus data. Marketing jobs are digital marketing jobs are available. Talking about the salary structure, the highest LPA of any content marketing manager is around 23 lakhs. And similarly for digital marketing manager is 18.5. And for SEO manager is 16 lakhs per annum. And this is the very authentic data of the Ambition Box 2024 data. You can cross check these data with the Ambition Box. So one of the best website which predicts the real industry standards. Now, before we move ahead for the session of SEO, first I'll let you know our parent organization. TriInfo IT Services Private Limited is our parent organization, and it is 12 plus year old organization. And TriInfo Services brings over 12 years of expertise in delivering high impact digital marketing solutions. As a Google Premium partner, we have helped 7,000 plus clients globally, achieving a 97% client retention. Our comprehensive services include SEO, local SEO, social media marketing, PPC management, performance marketing, content and email marketing, website development, Google Ads management, and online reputation management. With a focus on customized strategy that drive growth and ROI, we offer tailored solutions designed to meet our unique business goals and deliver measurable results for a long-term success. Now, talking about what is the advantage of TriInfo IT Services Private Limited. We have 12 plus years of experience. So we have seen the industry for a very longer period, for over a decade. And we have seen the ups and downs of the industry, the real challenges of the industry. So we are expert in solving the real-time problems. So if you're looking for any services from us, we can help you in that. And we are Google Premier partner. So we have worked with Google for very long time, and we have expertise in the Google products, whether it's a search engine optimization or ad or anything else. We can help you in Google products and any other products also. Talking about the customers or the clients, we have 7,000 plus satisfied clients with a 97% of client retention rate, because we deliver very high quality services to our clients and we ensure that every problem of these clients are solved. So we are proud to say that we have been able to achieve 97% client retention rates. And apart from that, we have presence in 3 countries as of now. So India, we have office in Noida. That office is in Noida.
Sector 62. And apart from that, we have office in USA, Chicago, and in London, in UK. So we have experience of working with clients of the multiple country. So we have faced the multiple challenges also, and we have been able to rectify or solve those issues. Now talking about our services, what we are giving to our clients is the search engine optimization, and social media marketing is one again service that we are giving. Local SEO, PPC management, Google Ads is one of our expertise, and we are a Google Premier partner. Website development is we have very expert team of the people who can design any kind of website with static, dynamic, or any requirement you are having. Even the e-commerce platform, we can design a website, develop a completely developed website for you. We have the facility of the performance marketing. We do content marketing, email marketing, and online reputation management. So these are the services that we are giving. Apart from that, we have multiple more services that we are offering to our students, to our clients. So if you have any problem, you can contact us. We can help you in solving those problems. Yeah. So it was about the Digital Institute and the parent company, TriInfo IT Services Private Limited. And if you want to either go for any training program, or you want to access any of the services, you can contact us. My team will also share the contact details in the chat box. You can take it down. And here is the contact details of the digitalinstitute.com. You can contact us on phone or through the website, or info@digitalinstitute.com. And we are physically present at the P406 Itham, Sector 62, Noida. So it was the presentation about the organization. Thank you so much for your patience. Now we'll start your session with search engine optimization. Our today's presenter is Mr. Jitendra Singh. He is having a 5+ year experience in training students and working on clients' projects. He has faced many challenges, and he is one of the most phenomenal trainer and the problem solver in the digital marketing world. So it's over to you, Mr. Jitendra. You can take the session ahead. Yep. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Rajesh, for the introduction. So very good morning, all of you, and thank you for joining this free webinar, and thank you for your precious time. So start करते हैं हम लोग SEO. आज की वेबिनार में जो हम डिस्कस करने वाले हैं SEO के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू SEO, इम्पोर्टेंस ऑफ SEO इन डिजिटल मार्केटिंग, overview of SEO, on page SEO and its components, off page SEO and its component, technical SEO and local SEO. ठीक है, ये सारी चीजें का हम एक ओवरव्यू लेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लास्ट में आपका Q&A सेशन होगा. अगर आपको कोई भी डाउट होता है आफ्टर दिस वेबिनार, सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज, विल आंसर इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज SEO? सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, it's a practice of optimizing web pages and content to make them more visible and rank higher in search engine result page organically without paying for placement. सबसे पहले ये समझ लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, क्यों हम बोलते हैं SEO. देखिए, सर्च इंजन हमारे ब्राउजर होते हैं, जैसे कि हमारा गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये हो गया. एंड ऑप्टिमाइजेशन होता है किसी भी चीज को इंप्रूव करना या उस पर काम करना. So this is why we called it search engine optimization. तो ऑप्टिमाइजेशन किसका करते हैं हम लोग? ऑप्टिमाइजेशन करेंगे हम लोग अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन के ऊपर, सो दैट वो रैंक हो सके सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर. सर्च इंजन रिजल्ट पेज हमारा वो पेज होता है जब भी कोई यूजर गूगल पे जाके कोई भी क्वेरी करता है, उसके बाद दिखने वाला जो फर्स्ट रिजल्ट होता है वो होता है हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो पहले पेज पे जितने भी हमें आंसर दिखते हैं अपनी क्वेरीज के. ठीक है, so SEO involves various strategic and techniques aimed at improving the quality and quantity of website traffic from search engine. SEO के अंदर काफी सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसके बारे में अभी आगे स्लाइड्स में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं या कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होती हैं जिनका हम यूज करके अपनी वेबसाइट को इजीली रैंक करा सकते हैं बिना किसी पे के या बिना किसी पेड मार्केटिंग के. हम ऑर्गेनिकली कैसे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं. ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली आपको अपनी मार्केटिंग के लिए कोई भी पेड मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, ट्रैफिक गेन कर सकते हैं. ठीक है,
एक एग्जांपल मेंशन किया इसके अंदर मैंने, सपोज अगर आपकी कोई एक बेकरी है, इफ यू आर हैविंग अ बेकरी, सो इफ यू रन अ बेकरी एंड यू वांट टू अट्रैक्ट मोर लोकल कस्टमर्स, optimizing your website for keyword like best bakery in your city, for an example best bakery in Noida या best bakery in Delhi, you can help your site appear at the top of search result when someone searches for a bakery in your area. So जैसे कि एक एग्जांपल इसमें मैंने दिया है कि अगर आप कोई बेकरी रन करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बेकरी पे लोकल ट्रैफिक आए या फिर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, तो आप उसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है उससे पहले आपको, कि जो मार्केट में लोग सर्च कर रहे हैं आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने इसके दिए अंदर दिया है, जैसे कि बेस्ट बेकरी इन नोएडा। ठीक है, अगर आपका बिजनेस नोएडा में है या फिर आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो आप उसके अंदर कुछ इस तरह के कीवर्ड यूज करेंगे, जैसे बेस्ट बेकरी इन नोएडा या फिर बेस्ट केक शॉप इन नोएडा। इस तरह से आप कीवर्ड यूज करेंगे, सो दैट जब भी कोई यूजर या जब भी कोई कस्टमर गूगल पे कुछ सर्च करता है आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग, तो गूगल आपकी वेबसाइट उनको विजिबल कर सके अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर। ठीक है, SEO involves a mix of strategic and techniques aimed at improving the visibility and ranking of a website or web page on search engine like Google, Bing, and Yahoo. This is done by making your content more relevant and authoritative in the eyes of these searching engines. So जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, SEO में कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में भी आगे चल के हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिनके ऊपर हम फोकस करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर। बिकॉज एक बेसिक सी बात ये है गाइज, कि अगर आप अपनी वेबसाइट का एक अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और उसके अंदर क्या क्या ऑप्टिमाइज करना है वो मैं भी आगे डिस्कस करेंगे, उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट चांसेस है कि गूगल के SERP पे सबसे पहले रैंक पे आए, क्योंकि जो वेबसाइट गूगल के सबसे ऊपर टॉप पे आती है, ज्यादा क्लिक्स या ट्रैफिक उन्हीं के ऊपर आता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि 90 to 95% यूजर ऐसे हैं, जब भी वो कोई क्वेरी सर्च करते हैं गूगल के सर्च इंजन पे, तो वो पहले पेज से नीचे नहीं जाते हैं, वो ऊपर से ही कोई ना कोई रिजल्ट चूज कर लेते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली हम इसके बारे में सीखेंगे अभी आगे चल के, उसका ओवरव्यू लेंगे ऑन पेज का, कि ऑन पेज पे हमें क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या रिलेवेंट कंटेंट हमें डालना चाहिए, और वो कंटेंट हम कैसे लिख सकते हैं सो दैट हम सर्च इंजन पे रैंक कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ SEO इन डिजिटल मार्केटिंग, कि SEO डिजिटल मार्केटिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है, SEO किस लिए सीखना चाहिए या फिर हमें SEO क्यों करना चाहिए। देखिए, बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप एक SEO एक्सपर्ट बनते हैं, अगर आपको SEO आता है, आपके पास काफी सारे वेज हैं, मतलब आप अपना करियर किसी भी इंडस्ट्री में लेके जा सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, या फिर कोई एक सिंगल इंडस्ट्री का नहीं है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री हो, आपकी हेल्थ इंडस्ट्री हो, आपकी फूड इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, आपका योगा जिम, हर किसी इंडस्ट्री को डिजिटल मार्केटिंग के बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि आप हर बंदे को जैसे कि आपको भी बताया मिस्टर राजेश ने, कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, फिर आपको अपने लिए ऑडियंस कलेक्ट करनी है। ठीक है, सो कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री के अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग का जो बंदे होते हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। सो बात कर लेते हैं पॉइंट्स के बारे में कि SEO क्यों इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्या क्या हेल्प मिलती है डिजिटल मार्केटिंग में SEO से। सो ड्राइव ऑर्गेनिक ट्रैफिक, cost effective marketing strategy, build trust and credibility, enhance user experience, provides a competitive advantage। ठीक है, सो दीज आर 5 पॉइंट्स। सो हम थोड़ा ब्रीफ, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ इसको कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं इन चीजों को। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप SEO के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू पे फॉर एनी मार्केटिंग, आपको इसके लिए कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बस SEO आना चाहिए। ठीक है, तो आपको SEO के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आपको जानने चाहिए, क्या क्या आपको आना चाहिए, वो डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे सीखने में उस चीज को। ठीक है, तो SEO के थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने बिजनेस पे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सेल भी इंप्रूव होगी और आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनलाइक पेड एडवर्टाइजिंग, SEO generate traffic without ongoing cost, making it a sustainable long term strategy। ठीक है, सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में, वैसे देखिए सेम है वो भी, आप सेम पॉइंट आपका ये भी है आपका, कि आप SEO की हेल्प से एक कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं।
कहने का मतलब है आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे या फिर अपने बिजनेस की वेबसाइट पे सिर्फ आपको मेहनत करनी है आपको। उसके अंदर क्या-क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो हम आपको सिखाएंगे डेफिनेटली, एसईओ में क्या-क्या होता है वो अप्लाई करनी है आपको, और आप उसके ही थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर अपने बिजनेस के ऊपर एक अच्छा ट्रैफिक ग्रो कर सकते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और एसईओ करने से देखिए सबसे अच्छी बात है कि आपके जो रिजल्ट हैं वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहते हैं आपकी वेबसाइट पे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा इस चीज के लिए। एक पेड मार्केटिंग और एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग का एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको इसमें। सपोज कीजिए आपकी एक वेबसाइट है और आपने उसका कोई भी एड चलाया, आपने गूगल एड चलाया आपने, या फिर कोई भी आप उसकी मार्केटिंग करते हैं। आप क्या करेंगे उसमें, आप एक मनी इन्वेस्ट करेंगे गूगल एड्स में, जिससे कि आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी, वो सोशल मीडिया पे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। बट जैसे ही आपका पैसा खत्म होगा, जैसे ही आपकी वो मनी आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, वो रिजल्ट आपका तुरंत डाउन हो जाएगा आपका। ठीक है। बट एसईओ में ऐसा नहीं होता है। एसईओ अगर आप किसी वेबसाइट का करते हैं, अगर आप अपनी बिजनेस वेबसाइट का एसईओ करते हैं या किसी भी पर्सनल वेबसाइट का एसईओ करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, वो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे मैं आपको डेफिनेटली इसके बाद बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या काम करने होते हैं आपको रैंक कराने के लिए उसे। तो उसमें क्या होता है, देखिए आप एक अनपेड मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उस पर कोर अपनी मेहनत कर रहे हैं, सारी की सारी कंटेंट लिख रहे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं हम। अगर आपने अपनी वेबसाइट एक बार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रैंक करा ली है, उसका रिजल्ट काफी लंबे टाइम तक वहां पे विजिबल रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि कोई पेड मार्केटिंग थी, पैसा पैसा खत्म हो गया आपका, वो नीचे आ गई, ऐसा नहीं होता है। आप एसईओ करेंगे अपनी वेबसाइट का, वो एक बार रैंक होगी, वो काफी लंबे टाइम तक ड्यूरेबल रहती है और वो डाउनग्रेड नहीं होती है। ठीक है। थर्ड है आपका बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। हाई सर्च इंजन high search ranking signal to user that your site is trustworthy and authoritative, as search engine like Google rank credible sites higher। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 90 to 95% ऑफ यूजर ऐसे हैं जो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज के आगे नहीं जाते हैं, वो अपना रिजल्ट या अपनी क्वेरी का आंसर जो है वो स्टार्टिंग की वेबसाइट से ही चूज करना प्रेफर करते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप अपनी वेबसाइट का एक अच्छे से एसईओ करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी। ठीक है। अगर और ये भी पाया गया है कि जो वेबसाइट गूगल के एसईआरपी के फर्स्ट पेज पे रैंक करती हैं वो वेबसाइट ज्यादा ट्रस्टवर्दी कहलाती हैं इन द आइज ऑफ सर्च इंजन एंड इन द आइज ऑफ यूजर आल्सो। ठीक है। अगर मैं भी हूं या आप भी हैं, अगर मैं कुछ क्वेरी सर्च करता हूं और सबसे पहले अगर मुझे कोई रिजल्ट शो होता है तो डेफिनेटली मैं उस पर ही क्लिक करना प्रेफर करूंगा। ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट योर यू कैन ऑल्सो बिल्ड अ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है। enhance user experience, optimize website are faster, mobile friendly and easy to navigate, providing a better user experience। देखिए अगर आप एक अपनी वेबसाइट का एक अच्छे से एसईओ करते हैं, उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कहलाती है। यूजर को नेविगेट करने में उसे दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी टू नेविगेट होगी और यूजर का एक्सपीरियंस उसे अच्छा होगा अगर आप उसका एक अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इफेक्टिव एसईओ स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर इन सर्च रैंकिंग, गेनिंग मोर विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक। देखिए एसईओ करके आप, क्लियर सी बात है, आप अपने कॉम्पिटिटर से डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उससे आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट का एक अच्छे से एसईओ करते हैं तो। ठीक है। सो दीज आर 5 एडवांटेज ऑफ एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एडवांटेजेस होते हैं, काफी सारी चीजें और हैं एसईओ के अंदर जो आपको सीखनी चाहिए। ठीक है। सो अगर आपको इसके बारे में और एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज चाहिए एसईओ के बारे में कि एसईओ एक्सपर्ट अगर आप एक बनना चाहते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। नंबर्स आपको पिन सेक्शन में मिल जाएंगे, आपको आप बात कर सकते हैं इस चीज के, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं डिजिटल एज की। ठीक है। ओवरव्यू ऑफ एसईओ। ठीक है। हो सकता है कि शायद जो डिस्प्ले पे मेरे पे विजिबल हो रहा है, शायद कुछ लोगों ने ये चीज ना सुनी हो, बट हाँ हो सकता है कि जिन लोगों ने कभी ना कभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पढ़ा है, तो शायद आपने क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग का नाम सुना होगा। हाई चांसेस। मैं आपको एक बार बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। देखिए गूगल पे जब भी आप कोई क्वेरी सर्च करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने गूगल क्रोम खोला, उस पर आपने कुछ भी क्वेरी सर्च की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेकरी शॉप इन नोएडा, या फिर आपने डाला बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया, कुछ भी डाला आपने, तो गूगल आपके सामने कुछ वेबसाइट प्रेजेंट करेगा, पहले नंबर पे कोई वेबसाइट, सेकंड पे कोई, थर्ड पे कोई। सो आपने कभी सोचा है कि
ये जो पहली वेबसाइट है पहले नंबर पे क्यों आ रही है, सेकंड पे क्यों आ रही है, थर्ड पे क्यों आ रही है, एसईओ सभी ने किया अपनी वेबसाइट का, ऐसा नहीं है कि एसईओ सब किसी ने नहीं किया, हर यूजर ने या हर क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट का एसईओ किया होगा, ठीक है। बट फिर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये रैंकिंग कैसे मिलती है, मतलब हमारा गूगल को जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज का बोट है वो कैसे काम करता है। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों चीजों के बारे में। देखिए क्रोलिंग क्या होती है। So crawling is the process by which search engine bots systematically browse the web to discover and index new or updated web pages, enabling search engine to provide relevant and up-to-date search result. गूगल का जो क्रोलर होता है या सर्च इंजन का जो हमारा क्रोलर होता है, इसे हम क्रोलर या स्पाइडर भी कह देते हैं, कह सकते हैं इसे हम, या इसका नाम स्पाइडर है। जब भी कोई यूजर कोई एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं या फिर हम अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट लिखते हैं या कोई कंटेंट डालते हैं, तो गूगल का बोट हमारे डेटा को क्रोल करता है, समझता है कि ये डेटा किस चीज के बारे में है। सपोज आपने कोई डेटा लिख दिया, फॉर एन एग्जांपल आपने एक कंटेंट डाल दिया अपनी वेबसाइट पे जिसमें आपने मेंशन किया है टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया टू विजिट, ठीक है। तो उसको सबसे पहले क्रोलर उसे एक बार रीड करता है, समझता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कंटेंट अबाउट। समझने के बाद उस कंटेंट को एक बार रीड करने के बाद उसको थोड़ा समझने के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आ जाता है हमारा इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्सिंग में क्या होता है आपका, उस डेटा को कैटेगराइज किया जाता है इंडेक्सिंग में। बिकॉज आप जानते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट कोई एक ऐसी वेबसाइट है जो आप एक फॉर एन एग्जांपल आप एक ट्रैवल वेबसाइट बनाते हैं, ऐसे करोड़ों यूजर होंगे जिन्होंने ट्रैवल के ऊपर वेबसाइट बनाई होगी, ठीक है। तो गूगल के सर्वर में वो डेटा प्रॉपर एक इंडेक्सिंग में जाता है जिसमें कि आपके ट्रैवल की वेबसाइट्स अलग होती हैं, आपकी फूड वाली वेबसाइट्स अलग होती हैं। ये किस लिए होता है, सो दैट जब भी कोई यूजर क्वेरी करे तो वो डेटा फैच करने में इजी हो। जैसे कि आपके बुक के सबसे नोटबुक के सबसे पहला पेज इंडेक्सिंग का पेज होता है जिससे आप चीजों को ढूंढना में इजी होता है, मतलब चीजों को आप इजीली ढूंढ सकते हैं आप। वैसे ही इंडेक्सिंग होती है आपकी। क्रोल करने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो इंडेक्सिंग का आता है जिसमें कि आपकी वेबसाइट को कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर निश या अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, कि आपकी वेबसाइट किस चीज के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होता है, अब जब भी कोई यूजर सर्च करता है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया या उसके अलावा कोई भी उसकी जो क्वेरी है वो रिसर्च करता है, सो इसमें रैंकिंग क्या करता है, रैंकिंग इंडेक्सिंग में जो वेबसाइट होती हैं कैटेगराइज वेबसाइट होती हैं उसमें से डेटा फैच करता है और वो उन्हीं वेबसाइट को सबसे टॉप पे रैंक देता है, वन या सेकंड या थर्ड पे उनको रैंक देता है जिस वेबसाइट का डेटा यूजर की क्वेरी सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा, जिसकी वेबसाइट का स्पीड या जिसकी वेबसाइट का कीवर्ड्स या जिस पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होगा, मतलब सबसे एक्यूरेट रिलेवेंट रिजल्ट यूजर को उठा के देगा हमारा रैंकर, ठीक है। सो बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं हमारी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के बैकएंड में जो चलती हैं। ये चीजें आपका ये जो प्रोसेस होता है आपका ये माइक्रो सेकंड का प्रोसेस होता है आपका, कि आपने गूगल पे लिखा बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया और आपने एंटर किया, एंटर करने से और विजिबल होने तक ये एक माइक्रो सेकंड में तीनों चीज हो जाती हैं आपकी, ये क्रोलिंग इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिस इज द वे हाउ सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन इस तरह से काम करता है, इन तीनों बोर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एसईओ जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑन पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ के बारे में आज सीखेंगे हम, ऑफ पेज एसईओ के बारे में एंड लोकल एसईओ के बारे में, ठीक है। ऑन पेज एसईओ, सो ऑन पेज एसईओ क्या है, एक सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूं तो ऑन पेज एसईओ का मतलब है अपने पेज के ऊपर काम करना, वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर काम करना है। रीजन, हम अपनी वेबसाइट के पेजेस पे काम करते हैं क्योंकि वेबसाइट रैंक नहीं होती है, वेबसाइट के अंदर सिंगल सिंगल पेज होते हैं वो रैंक होते हैं, इसलिए हमें अपने इंडिविजुअल पेजेस पे काम करना पड़ता है, ठीक है। सो ऑन पेज एसईओ इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग वेब पेज कंटेंट एंड एचटीएमएल सोर्स कोड टू इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। इट इंक्लूड्स कीवर्ड यूसेज, मेटा टैग्स, इंटरनल लिंकिंग, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड रिलेवेंस इन सर्च रिजल्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑन पेज के ऊपर हमें काम करना पड़ता है बिकॉज हमारी वेबसाइट का सिंगल सिंगल पेज होता है वो रैंक होता है एज पर यूजर क्वेरी या जिसपे हमने जो भी डेटा डाला हुआ है, और जब भी कोई यूजर सर्च करता है उससे कुछ रिलेवेंट तो गूगल उस पेज को रैंक कराता है गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, ठीक है। सो ये मैंने कुछ कंटेंट कुछ इसमें कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं जो आपको अपने ऑन पेज पे इंप्रूव करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट का पेज रैंक हो। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पे काम करके आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सो
जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है वेबिनार के अंदर, तो हम सब कुछ इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन आवर डिजिटल मार्केटिंग एडवांस कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट एसईओ एक्सपर्ट का कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा कि आप एक एसईओ एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। और वो करके आप या तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं। अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ, अगर आपका खुद का बिजनेस है, खुद की कोई वेबसाइट है, आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको सारी नॉलेज दी जाएगी कि आप एक वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं सीएमएस के थ्रू, और उसके बाद उसको रैंक कैसे करा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, सो फॉर दिस आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा इंस्टीट्यूट का, जिससे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, सो हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग्स, कंटेंट, इमेज, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, ये क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टाइटल टैग के बारे में कि टाइटल टैग होता क्या है। सो गाइस, टाइटल टैग एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है हमारे वेब पेज का, जो कि हमें एसईआरपी पे विजिबल होता है। एसईआरपी मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सबसे मेन चीज होती है, हेडिंग होती है, क्योंकि देखिए इसी को देख के कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे क्लिक करता है या हमारी वेबसाइट के पेज पे आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ तरह से विजिबल होता है ये। मैंने गूगल पे सर्च किया है, जैसे सपोज करो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ डिजिटल एज इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको इस पे रिजल्ट दिख रहा होगा सामने हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। डिजिटल एज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आपको शो हो रही होगी, साथ में आपको इसकी लिस्टिंग भी दिख रही होगी आपको, ये वाली। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट में जो आपको जब सबसे टॉप पे दिख रहा है ये ब्लू कलर का, ये जो क्लिकेबल टेक्स्ट दिख रहा है आपको, सो दिस इज कॉल्ड हेडलाइन। ठीक है, ये टाइटल होता है हमारा ये वेबसाइट का, जो कि क्लिकेबल होता है, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हम बोलते हैं इसे, आपका ये हमारा डिस्क्रिप्शन होता है नीचे इसके, जो कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर विजिबल होता है। ठीक है, सो एक क्लिकेबल हेडलाइन होती है। टाइटल पे काम करना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि इसी पे एक तो जब भी कोई यूजर कुछ क्वेरी करता है तो उसे सबसे ऊपर टाइटल शो होता है, और टाइटल हमारा हमेशा आई कैची होना चाहिए, जिससे कि पढ़ के कोई कस्टमर या कोई हमारा यूजर है हमारी वेबसाइट पे क्लिक करे। ठीक है, अब इसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाई जाती हैं, क्या क्या कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए, फिर हमारा टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए, शॉर्ट या लॉन्ग कैसे रहना चाहिए, ये सब चीजें आपको जानने को मिलेंगी कोर्स के दौरान। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमसे ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेटा डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ, जो कि आपका गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे टाइटल के नीचे विजिबल होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑन पेज एसईओ। डिस्क्रिप्शन आपका आपके वेबसाइट के पेज से रिलेवेंट होना चाहिए। जो भी आप डिस्क्रिप्शन में अपने यूजर को दिखा रहे हैं, वो ही डेटा आपको अपनी वेबसाइट में भी मेंशन करना पड़ता है। इसमें भी आप अपने कीवर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर आपको डेफिनेटली करने चाहिए, क्योंकि जो आपका रिजल्ट विजिबल होता है गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, जो कि हमारा गूगल बोर्ड दिखाता है यूजर को, वो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के दिखाता है कि आपका टाइटल पे कौन से कीवर्ड है, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में कौन से कीवर्ड है, या फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो कितना यूजर की क्वेरी से मैच कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे भी काफी सारी स्ट्रेटेजी है जो आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेंगे कोर्स के दौरान। थर्ड है आपका हेडर टैग्स। अब हेडर टैग्स क्या होते हैं, होप आपने कुछ लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा इसके बारे में, हेडर टैग्स के बारे में। ये एक बेसिकली हेडिंग्स होती है हमारी। आप अगर कोई एमएस वर्ड आपने देखा हो कभी, या एक्सेल में आपको देखने को मिलेंगी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6 तक आपने देखे होंगे आपने। ये सबसे, या कह सकते हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ऑन पेज एसईओ का, कि चीजों को हेडिंग्स में डालना, या फिर चीजों को प्रॉपर एक अलाइन करना, जो कि हेल्प करती है हमारे गूगल के क्रोलर को या हमारे गूगल के बोट को समझने में कि जो हमारा कंटेंट है वो किस चीज के बारे में है, उस कंटेंट के अंदर क्या चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक ब्लॉग लिखता हूं, अब सपोज कीजिए, मैं आपको प्रेजेंट करके थोड़ा दिखा देता हूं मैं इसके बारे में आपको, वेट अ मिनट। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप वेबसाइट पे कोई ब्लॉग लिख रहे हैं और आपने ब्लॉग का जो टाइटल है वो रखा है आपने टॉप 10 प्लेसेस इन दिल्ली, सॉरी प्लेसेस इन इंडिया रख लीजिए आप। ठीक है, सो इस हेडिंग को जो हमारा टाइटल होता है हमारे ब्लॉग का या हमारे पोस्ट का, वो हमेशा हमारा H1 कहलाता है, हमारा हेडिंग 1 कहलाता है हमारा वो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब भी आप कोई दूसरा पैरा स्टार्ट करते हैं आप अपने पोस्ट के अंदर या ब्लॉग के अंदर, सपोज करो मैं दूसरे कुछ पोस्ट के अंदर दूसरी चीजें लिखने वाला हूं मैं, वो लिखने वाला हूं मैं बेस्ट
प्लेसेस इन जयपुर। सो ये मेरी हेडिंग 2 रहेगी, क्योंकि ये हेडिंग 1 को रिप्रेजेंट कर रही है मेरे को। अगर मेरा, बिकॉज जयपुर इंडिया के अंदर आता है, सो ये जयपुर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर उसी ब्लॉक के अंदर मैं लिखता हूं बेस्ट प्लेसेस नियर हवा महल, जो कि जयपुर के अंदर है, सो इसको मैं टैग करूंगा अपना S3 के अंदर। रीजन, क्योंकि ये हमारा H2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बिकॉज हवा महल जो जयपुर के अंदर है और जयपुर जो है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। सो इसी तरह से हमें अपने, जब हम कंटेंट को लिखते हैं, हमें उसके अंदर हेडर्स का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हम क्रोलर को समझा सकें कि अगर मेरा एक पोस्ट है उसके अंदर अगर मैं कोई टाइटल लिख रहा हूं, तो वो टाइटल किस चीज के लिए है, मतलब उसके अंदर जो पैराज या उसके अंदर जो मैंने पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो किस चीज के बारे में है, और उसके बाद अगले जो पैराग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये बेसिकली नेविगेट करने में हेल्प करता है हमारे कंटेंट को क्रोलर के सामने, ठीक है। सो अगला जो कंपोनेंट है वो है हमारा कंटेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिना कंटेंट के तो डेफिनेटली वेबसाइट पे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो कंटेंट हमारा कैसा होना चाहिए, उस कंटेंट में कितने कीवर्ड्स होने चाहिए, उस कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो कंटेंट किस तरह से दिखना चाहिए, या उस कंटेंट की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सारी स्ट्रेटजी आपको सीखने को मिलेंगी कोर्स के दौरान, कि आप एआई का यूज करके कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कंटेंट को आप रिफ्रेश कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं, या उस कंटेंट को आप डुप्लीकेट होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। कंटेंट के अंदर आप कौन से कीवर्ड यूज करेंगे, और कौन से कीवर्ड किसका कंटेंट जो कीवर्ड है आपका, उसका गैप किस कंटेंट में कितना कितना होना चाहिए, जिसमें कि जैसे कि आप कीवर्ड डेंसिटी बोल सकते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए कंटेंट के अंदर। ये सब आपको सीखने को मिलेगा कोर्स के दौरान आपको, ठीक है। अगला जो कंपोनेंट है वो है इमेज। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके कंटेंट के अंदर जो आप इमेज इंसर्ट करते हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर जो ब्लॉग लिखते हैं, वेबसाइट पे जो भी आप इमेज करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा, या फिर हमें उसके ऊपर हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिससे कि वो इमेज हमारी ऑप्टिमाइज रहे, जिससे कि वो इमेज भी रैंक हो सके। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हमारी इमेज भी हमारे कंटेंट की तरह या वेबसाइट के पेजेस की तरह रैंक करती है। कहाँ रैंक करती है? सपोज करो अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ गूगल पे, आप कुछ भी लिखिए, आप मैगी रेसिपी लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए गूगल पे, उसके बाद इमेज सेक्शन होता है उसके अंदर आपका एक, ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, रुकिए एक सेकंड। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नाइक शूज, या सपोज करो मैं शूज ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे शूज, ठीक है। शूज में जाके अगर मैं इमेज सेक्शन के अंदर जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इंडिया मार्ट की इमेज रैंक कर रही है, यहाँ पे आपकी फ्लिपकार्ट की इमेज रैंक कर रही है, यहाँ पे आपकी नाइक की रैंक कर रही है, यहाँ पे आपकी ट्रेंडिंग इंडिया कर रही है। ये कोई ऐड नहीं है, यहाँ पे आपकी सिंगल इमेज रैंक कर रही है। और अगर आप ऑल पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होती है आपकी, जैसे कि आपकी मिंत्रा की वेबसाइट रैंक कर रही है या फिर निमान की वेबसाइट रैंक कर रही है, वैसे ही आपकी इमेजेस भी रैंक करती हैं, ठीक है। अब ये इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, इसे कहते हैं हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एसईओ होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वैसे ही आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी है, जो कि आपका ऑन पेज का ही पार्ट है। सो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि आपकी इमेज भी गूगल के एसईआरपी में इमेज सेक्शन में रैंक कर सके, वो आपको इसमें बताया जाएगा। कि जैसे कुछ ओल्ड टैग्स होते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, हम इमेज को साइज को ज्यादा बड़ा ना करके साइज को थोड़ा छोटा रख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बिना कॉम्प्रेस किए, उसकी क्वालिटी को बिना खराब किए, जिससे कि वेबसाइट की स्पीड पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको सीखने को मिलेंगी इमेज के अंदर। कुछ आपकी 7-8 स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको इमेज के अंदर ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल इंसर्टिंग अ इमेज ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक के थ्रू ही आपकी वेबसाइट के पेज अथॉरिटी पे या फिर आपकी वेबसाइट के नेविगेशन पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। इंटरनल लिंक क्या होते हैं? इंटरनल लिंक बेसिकली आपकी वेबसाइट पे लगाए हुए हाइपर लिंक होते हैं, जो आप किसी भी वर्ड के पीछे लगाते हैं और उस पर क्लिक करके कोई यूजर आपका दूसरे पेज पे जा सकता है। यूजर ही नहीं, अगर कोई जब भी आपकी वेबसाइट की क्रोलिंग होती है या भी जब भी गूगल का बोट क्रोल करता है आपकी वेबसाइट को, तो वो भी आपके एक पेज के दूसरे पेज पे जाने में उसे हेल्प मिलती है लिंक के थ्रू। साथ ही साथ आपकी वेबसाइट का कोई पेज है, अगर वो अच्छा रैंक कर रहा है और उसका पेज अथॉरिटी अच्छी है,
ठीक है, तो उस पेज के थ्रू अगर वो किसी दूसरे पेज पे जाता है तो उस पेज की अथॉरिटी भी ट्रांसफर होती है दूसरे पेज के ऊपर। ठीक है, आपको शायद थोड़ा बहुत सुनने में नया लग रहा होगा ये, बट हाँ, अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं अपने आप को, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर करी जाएंगी कि पेज अथॉरिटी होती क्या है एग्जैक्टली, कैसे बढ़ती है या कैसे हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं और ये क्या हेल्प करती है रैंकिंग में। ठीक है, वैसे ही आपके होते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक वो लिंक होते हैं जो आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे आपको लेके जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप अगर कोई दो वेबसाइट ओन करते हैं अपनी किसी बिजनेस की, तो आप अपनी एक वेबसाइट पे अपनी दूसरी वेबसाइट का एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और इससे नेविगेशन भी अच्छी होती है आपकी वेबसाइट की। ठीक है, सो ये कुछ एक ओवरव्यू था ऑन पेज के बारे में, जो आपको बेसिक चीजें कुछ ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल डूइंग योर ऑन पेज एसईओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, ऑफ पेज एसईओ का नाम आपने सुना होगा किसी ना किसी ने डेफिनेटली, which is a very important factor of optimization. ठीक है, so off page SEO refer to optimization activity that take place outside of your website but still have an impact on your website search engine rankings. These activity primarily focus on building your website authority, relevance and trustworthiness in the eyes of search engine and user. देखिए, इससे पहले अभी मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऑन पेज एसईओ, और मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज एसईओ वो एसईओ होता है जो कि आप अपनी वेबसाइट के सिंगल सिंगल पेज के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। वाइल बात करें ऑफ पेज के बारे में, सो ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वो ऑप्टिमाइजेशन होती है जो आप अपनी वेबसाइट पे ना करके अपने मतलब किसी दूसरे की वेबसाइट पे करते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका आ जाती हैं आपके बैकलिंक्स, सुना होगा आपने बैकलिंक्स के बारे में। ठीक है, सो ये वो ऑप्टिमाइजेशन होती है जो कि आपकी वेबसाइट से बाहर आपको करनी पड़ेगी, किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सो दैट आपको एसईआरपी पे रैंकिंग में हेल्प मिले। ठीक है, सो काफी सारे तरह के बैकलिंक्स है जो मैंने आपको यहाँ कुछ नाम मेंशन किए हैं यहाँ पे मैं आपको, जैसे कि डायरेक्टरी सबमिशन है, सोशल नेटवर्किंग है, ब्लॉगिंग है, फॉर्म पोस्टिंग है, आर्टिकल सबमिशन है, प्रेस रिलीज है, रिव्यू है, इवेंट सबमिशन है, वीडियो प्रमोशन है, पीडीएफ है, ऑनलाइन आंसर है, पोस्ट है। ये सारे के सारे बैकलिंक्स की आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे, क्योंकि बिकॉज आप जानते हैं कि हमारे पास थोड़ा टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, सो इसलिए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज के बारे में। ये एक एक बैकलिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ठीक है, ये बैकलिंक कैसे क्रिएट किए जाते हैं, किस बैकलिंक की क्या वैल्यू होती है, और बैकलिंक को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट्स पे जा जाके, और कौन सा वेबसाइट का बैकलिंक किस वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कोर्स के दौरान। ठीक है, ऑफ पेज से जो दो सबसे बड़े फायदे होते हैं आपकी वेबसाइट को, वो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ऑफ पेज एसईओ। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट का एक अच्छा ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अच्छी होती है, साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है आपकी वेबसाइट के लिए। कैसे मिलता है वो? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी ऐसी फेमस वेबसाइट पे अपना बैकलिंक या अपने हाइपरलिंक के थ्रू अपनी वेबसाइट का लिंक डाला जिसपे ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है जिसपे कि काफी अच्छा ट्रैफिक है, मिलियन या बिलियन का ट्रैफिक उसके ऊपर होगा। अगर वहां पे जाके आप अपना एक बैकलिंक क्रिएट करते हैं, वो बैकलिंक कैसे क्रिएट करने होते हैं वो डेफिनेटली आपको इसका बारे में जानकारी दी जाएगी कोर्स के दौरान कि एक प्रॉपर एक बैकलिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रोलिंग हर वेबसाइट की होती है, वैसे ही पिंटरेस्ट की भी क्रोलिंग होती है, और क्रोलिंग का डोमेन अथॉरिटी काफी अच्छी है। मतलब अगर आप बात करें तो 90+ आपको डोमेन अथॉरिटी मिलेगी पिंटरेस्ट की। अगर आप पिंटरेस्ट वेबसाइट पे जाके आप अपना खुद का एक लिंक क्रिएट करते हैं वेबसाइट का, तो जैसे ही उस वेबसाइट की क्रोलिंग होती है, तो अगर क्रोलर को आपकी वेबसाइट का लिंक मिलता है उसके ऊपर, तो क्रोलर उस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट में एंटर करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी क्रोलर किसी लिंक के थ्रू आपके पेज पे आता है, तो वो उस वेबसाइट का लिंक अथॉरिटी है, उसका लिंक जूस आपकी वेबसाइट पे लेके आता है, ट्रांसफर होता है आपकी वेबसाइट पे। तो अगर उसकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 90 है और आपकी 40, 50 या जितनी वेबसाइट पे अथॉरिटी है आपकी पे, अगर वहां के थ्रू क्रोलर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो उस वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर आपकी वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाएगा कुछ अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है आपको ऑफ पेज का कि आपका डीए इंप्रूव होता है। अलोंग विद दैट, अगर कोई यूजर पिंटरेस्ट पे कुछ सर्च करने के लिए जाता है, फॉर एन एग्जांपल वो इमेज ही डाउनलोड करने के लिए गया हुआ है
और वहां पे उन्होंने आपका एक पोस्ट देखा जिसमें आपने अपनी फोटो डाली हुई है, साथ में लिंक डाला हुआ है, तो चांसेस है कि यूजर भी क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे ट्रांसफर हो सकता है। सो देयर आर टू बेनिफिट ऑफ पेज एसईओ, जो मेन बेनिफिट्स हैं, जिससे कि आपकी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव होती है और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में। Technical SEO refer to the process of optimizing a website infrastructure to improve its visibility in search engine. Technical SEO deals with the backend element of a site that affect its performance and crawling indexing by search engine. These activities primarily focus on building your website authority, relevance, and trustworthiness in the eyes of search engine and user. टेक्निकल एसईओ आपका वो एसईओ होता है जो कि आपके बैकएंड में काम करता है। इसके अंदर हमारे काफी सारे टेक्निकल कंपोनेंट्स आते हैं जो हमें अपनी वेबसाइट पे फोकस रखने चाहिए। ये कोई ऑन पेज एसईओ की तरह नहीं है कि आप इसमें डेली काम करेंगे। ये कुछ टेक इश्यूज होते हैं जो आपकी वेबसाइट में आ जाते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको अपनी वेबसाइट अच्छी रैंक करानी है सीआरपी के ऊपर। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ 5 बेसिक पॉइंट्स या आप कह सकते हैं 5 मैंने कंपोनेंट्स के अंदर मेंशन किए हैं। इसके अलावा और भी टेक्निकल एसईओ के काफी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है मैंने इसके अंदर जो मेंशन किया है वो किया है साइट स्पीड। तो साइट स्पीड से मेरा मतलब है वेबसाइट की स्पीड, कि जब भी कोई यूजर गूगल एसईआरपी पे कुछ सर्च करता है और वहां से वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है, तो क्लिक करने से लेके और आपकी वेबसाइट को ओपन होने की जो ड्यूरेशन होती है उसे हम साइट स्पीड कहते हैं। टेक्निकल एसईओ का सबसे मेन पार्ट है ये कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, कि अगर कोई यूजर खोल रहा है आपकी वेबसाइट को तो वो कितनी देर में ओपन हो रही है, कितनी देर में उसे आपकी इमेजेस शो हो रही हैं, कितनी देर में आपका जो कंटेंट है वो अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए साइट स्पीड के अंदर। और साइट स्पीड के अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी कोर्स के अंदर कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और साइट स्पीड को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से आपको प्लगइन्स या कौन कौन से आपको टूल्स अपनी वेबसाइट के लिए आपको यूज करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं जिससे अपनी आप साइट स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कोर्स के दौरान। अगला आ जाता है आपका कैनोनिकल टैग। कुछ लोगों के लिए देखिए ये वर्ड बिल्कुल न्यू होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, बट यस बिकॉज ये ओवरव्यू है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आप एक बार मतलब आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा टीम से। आपको आप डेमो लेके देख सकते हैं, बिकॉज डेमो का तो कोई चार्जेस नहीं है, तो आप डेमो डेफिनेटली लेके देख सकते हैं। वहां पे आपके जो भी डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कैनोनिकल टैग के बारे में बता रहा था मैं। तो कैनोनिकल टैग में क्या होता है, कैनोनिकल टैग एक तरह का एरर है या एक तरह का इशू है। यूजर के लिए तो इशू नहीं है, बट यस क्रोलर के लिए या फिर हमारे गूगल बोर्ड के लिए इशू होता है। क्या होता है कैनोनिकल टैग, देखिए जब हमारी वेबसाइट एक या एक से ज्यादा यूआरएल से ओपन होने लग जाती है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। जैसे कि आपके सामने डिजिटल एज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खुली हुई है। ठीक है, मतलब पेज खोला हुआ है मैंने, या अब हम इसकी वेबसाइट को खोल लेते हैं, डिजिटल एज की वेबसाइट को। ठीक है, देखिए मैं एक नए टैब में डिजिटल एज की वेबसाइट को खोलता हूँ, डिजिटल एज ठीक है, मैंने यूआरएल में टाइप किया था digitaledgeinstitute.com और मैंने एंटर किया तो वेबसाइट मेरे सामने खुल गई है। ठीक है, आगे जाके मैं टाइप करता हूँ www.digitaledgeinstitute.com। ठीक है, मैं यहाँ पे टैब में डाल रहा हूँ डिजिटल एज इंस्टीट्यूट .com। ठीक है, आप देखिए मैंने यूआरएल में सिर्फ जो मेंशन किया है वो मैंने किया है digitaledgeinstitute.com और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं भी। वेबसाइट खुल गई है मेरे सामने। मैं दूसरे एक टैब में डाल रहा हूँ इसके, ओपन दोबारा से वेबसाइट कर रहा हूँ www.digitaledgeinstitute.com। ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, एक सेकेंड, institute.com या ठीक है। जो पहला यूआरएल था वो मैंने डाला था digitaledgeinstitute.com और मैंने जो सेकंड यूआरएल डाला है मैंने वो डाला है www.digitaledgeinstitute.com। थर्ड में जो यूआरएल में ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट को, वो कर रहा हूँ मैं http:// ठीक है, मैंने digitaledgeinstitute.com मेंशन किया है तो वेबसाइट मेरी यहाँ पे खुल गई हमारे इंस्टीट्यूट की।
मैं दूसरे टैब में इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ www.digitaledgeinstitute.com, ठीक है। थर्ड मैंने टैब में डाल रहा हूं मैं http://www.digitaledgeinstitute.com, ठीक है। एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, इंस्टीट्यूट, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको 3 यूआरएल से, डिफरेंट यूआरएल से मैंने आपको ये वेबसाइट ओपन करके दिखाई है। इस वाली वेबसाइट को मैं, इस वाले पेज को मैंने ओपन किया था ओनली डिजिटल एज इंस्टीट्यूट के नाम से, इसको मैंने ओपन किया था www.digitaledgeinstitute के नाम से, और इसको मैंने ओपन किया हुआ है http://www.digitaledgeinstitute.com के नाम से। ऐसे ही मैं इस वेबसाइट को और 10 तरीके से ओपन कर सकता हूं मल्टीपल यूआरएल से, ठीक है। देखिए है तो ये सिंगल वेबसाइट और खुल भी सिंगल रही है मतलब, बट गूगल के लिए ये एक डुप्लीकेट यूआरएल की वेबसाइट हो गई है। मतलब गूगल के क्रोलर या गूगल के बोट की नजरों में ऐसा होता है कि इस वेबसाइट के डुप्लीकेट यूआरएल हैं, और इसे गूगल बोलता है कैनोनिकल इशू, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी वेबसाइट का कैनोनिकल इशू को रिजोल्व करने के लिए हमें एक मास्टर यूआरएल जो है वो अपने वेबसाइट के बैकएंड में डालना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है, सो दैट हम गूगल को ये बता सकें कि कोई भी यूजर अब अगर किसी भी यूआरएल के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आता है, बट सारा जो ट्रैफिक है हमारा वो इस यूआरएल पे काउंट करना है आपको, तो वो यूआरएल जो होता है मास्टर यूआरएल हमें वो अपने बैकएंड में जाके पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे पेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली आपको कोर्स के दौरान सीखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी। ये सारे टेक्निक्स आपको, डीप नॉलेज आपको मिलेगी कोर्स के दौरान कि कैनोनिकल इशू कहाँ पे पेस्ट करा जाता है, एचटीएमएल के थ्रू आप कैसे टैग लगा सकते हैं, या फिर प्लगइन के थ्रू आप कैनोनिकल इशू कैसे रिजोल्व कर सकते हैं अपना आप, ठीक है। थर्ड बात कर लेते हैं robot.txt फाइल, व्हाट एग्जैक्टली रोबोट्स टीएक्सटी फाइल इज। सो robot.txt फाइल एक फाइल है जिसके थ्रू हम अपने क्रोलर को या हम अपने इंडेक्सर को एक कमांड देते हैं कि किस पेज को आपको क्रोल कराना है, किस पेज को आपको क्रोल नहीं कराना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी सबसे पहले क्रोलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग के बारे में, कि गूगल बोट होता है जो कि हमारे डेटा को क्रोल करता है जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आवर वेबसाइट इज ऑल अबाउट। तो हम अपने क्रोलर को एक कमांड देके उसे स्टॉप भी कर सकते हैं अगर हमें अपनी वेबसाइट का कोई ऐसा पेज है। फॉर एन एग्जांपल, आप सपोज कीजिए कि आपकी वेबसाइट का एक पेज है जिसपे आपके कस्टमर का डेटाबेस रखा हुआ है, जिसपे आपके कस्टमर का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, या कोई ऐसा पेज जो शायद आपको नेसेसरी ना हो कि रैंक कराना है आपको। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि वेबसाइट के हर पेज को क्रोल करने में गूगल के क्रोलर को टाइम लगता है। तो आप क्या करेंगे, आप फॉर द टाइम बिंग उस पेज की क्रोलिंग को स्टॉप कर देंगे, सो दैट आपका टाइम बचे, ठीक है, सो दैट आपका टाइम बचे और आपकी वेबसाइट इजिली रैंक हो सके, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, मैं आपको एक इसका एग्जांपल करके दिखा देता हूं मैं आपको कि कैसे आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, या कैसे इसका फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे वो तो डेफिनेटली आपको कोर्स के दौरान जानने को मिलेगा। सो मैं वेबसाइट का नाम यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उसके आगे मैं लिख रहा हूँ /robots.txt, ठीक है। सो मेरे सामने एक फॉर्मूला ओपन हो गया है, इसे मैं यहाँ पे नोटपैड में इसको पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है। सो ये होता है हमारे robots.txt के कमांड देने का एक फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे अपने रोबोट या अपने क्रोलर को किसी वेबसाइट के पेज को क्रोल करने से स्टॉप करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस फॉर्मूला को। देखिए इसमें एक सबसे ऊपर लिखा हुआ है यूजर हाइफन एजेंट डबल कोलन स्टारलेट, ठीक है। ये स्टारलेट क्या है, ये क्यों लगाते हैं हम इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला से क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ तीनों चीजों के बारे में कि यूजर एजेंट क्या होता है, अलाउड डिसअलाउ का मतलब क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। देखिए यूजर हाइफन एजेंट के अंदर हम अपने क्रोलर, क्रोलर मतलब बोट, ठीक है। बोट आपके हर सर्च इंजन के अलग अलग बोट होते हैं, याहू बोट अलग होता है आपका, गूगल बोट होता है, या फिर आपका बिंग बोट, हर क्रोलर के अपने अपने बोट होते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो वो गूगल पे ही ओपन होगी, याहू पे ओपन नहीं होगी, हर सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो डेफिनेटली अगर आप किसी क्रोलर को मना करेंगे या किसी क्रोलर को आप कमांड देंगे कि नहीं आपको मेरा ये डेटा क्रोल नहीं करना है और ना ही मुझे ये वेब पब्लिक के सामने विजिबल कराना है बिकॉज मेरा सीक्रेट डेटा है, तो आप एक कॉमन कमांड दे देंगे जिससे कि आपका वो वेबसाइट का पेज किसी क्रोलर की नजरों में नहीं आएगा या फिर उसे क्रोल करने से उसे अलाउ नहीं होगा, मतलब उसको, ठीक है।
इस स्टारलेट का जो मतलब होता है, ये एक स्टैंडर्ड कमांड है सभी क्रॉलर के लिए। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैंने अपनी वेबसाइट का कोई पेज है, फॉर एन एग्जांपल वेबसाइट है डिजिटल एज इंस्टीट्यूट, अगर मुझे अपनी वेबसाइट का कोई पेज है, अगर मुझे पेज रैंक नहीं कराना है कॉन्टेक्टस का फॉर एन एग्जांपल, या किसी कारण से मुझे कोई वेबिनार का पेज है वो मुझे रैंक नहीं कराना है, सो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेबिनार का पेज के बाद का जो यूआरएल है, आप देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट का जो डोमेन है, यूआरएल है, इसके बाद जो लिखा हुआ है ये webinar.php, मैं इसे कॉपी करके और अपना डिसअलाउ के आगे पेस्ट कर दूंगा सिंपल में यहाँ पे। ठीक है, अलाउ आपके पेजेस ऑलरेडी होते हैं, रैंडम अलाउ ऑटोमेटिकली अलाउ होते हैं, अलाउ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो ये अलाउ वाला जो ऑप्शन है, ये एक अलग चीज के लिए यूज करा जाता है, वो मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगा इसके बारे में भी। देखिए, यूजर डबल कोलन जो स्टारलेट है, इसके थ्रू आप तीनों बोट को एक सिंगल स्टैंडर्ड कमांड दे रहे हैं, वो बेशक गूगल बोट हो, याहू बोट हो या बिंग बोट हो, कि आपको तीनों को ये कमांड है कि आपको किसी को भी मेरा ये वाला पेज क्रॉल नहीं करना है या अलाउ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ गूगल को ये कमांड देना चाहता हूं या फिर मैं सिर्फ याहू को ये कमांड देना चाहता हूं, तो आप इसके आगे सिंपल लिख सकते हैं गूगल बोट। अगर आप ऐसा लिख के जो कमांड देते हैं आप, तो स्पेसिफिकली आप गूगल बोट को एक कमांड दे रहे हैं कि गूगल का जो बोट है, गूगल का जो क्रोलर है, वो इस पेज को क्रोल नहीं करेगा, बाकी याहू और बिंग को दोनों को अलाउ है ये पेज क्रोल करने के लिए। ठीक है, सो ऐसे ही आप जिस भी क्रोलर का नाम लिख देंगे या जिस भी सर्च का नाम लिखते हैं इसके अंदर आप, तो आप स्पेसिफिकली भी कमांड दे सकते हैं पर्टिकुलरली किसी क्रोलर को। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी क्रोलर अलाउ ना करे इसे, तो आप डेफिनेटली इसमें स्टारलेट डाल देंगे इसके अंदर। सो स्टैंडर्ड हो जाएगा हमारा ये कि किसी भी क्रोलर को अलाउ नहीं है ये पेज को क्रोल करना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अलाउ के बारे में। देखिए, अलाउ वाला चीज क्यों अप्लाई करी जाती है, अगर आप कहेंगे कि अलाउ जब ऑलरेडी होता है तो फॉर्मूला में क्यों है अलाउ, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कई बार ऐसा होता है, सपोज कीजिए ये मेरे वेबसाइट में प्रोग्रामिंग कोर्स एक पेज है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग कोर्स का जो पेज है, ये पेज की क्रोलिंग बंद हो जाए पूरे पेज की, फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने सपोज कीजिए मैंने ये पेज का, हालांकि पेज का यूआरएल नहीं है ये, मैंने इस पेज की क्रोलिंग को बंद कर दिया यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, पूरा पेज की क्रोलिंग बंद कर दी, बट मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से ये वाला पेज है जुमला ट्रेनिंग कोर्स का, या फिर कोई भी एंड्रॉइड ट्रेनिंग कोर्स का पेज है, ये क्रोल होना चाहिए, बाकी सब बंद हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्पेसिफिकली इस पेज को ओपन करूंगा और मैं इस पेज की यूआरएल को अलाउ कर दूंगा क्रोल होने के लिए। अब इस केस में मेरा क्या हो गया है, इस केस में मेरा ये पूरा पेज जो है वो इसकी क्रोलिंग बंद हो गई है, बट स्पेसिफिकली इस वाले पेज की क्रोलिंग ऑन है। तो इस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि पूरे पेज को हमने क्रोलिंग बंद कर दी है, बट स्पेसिफिकली एक यूआरएल की हमने क्रोलिंग अलाउ की हुई है इसके अंदर, तब जाके हमारा ये फॉर्मूला काम आता है हमारा अलाउ डिसअलाउ का। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट, सो आपने सुना होगा एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या इंपॉर्टेंट चीज है हमारी वेबसाइट के लिए, क्योंकि ट्रस्टवर्दी कहलाती है हमारी वेबसाइट अगर हमारी वेबसाइट को सर्टिफिकेट मिला होता है। कैसे पता चलता है वेबसाइट को सर्टिफिकेट मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है? देखिए, अभी जो मैंने आपको एक यूआरएल बताया था http करके, जो मैं वेबसाइट खोली थी, सो जिस वेबसाइट के आगे आप देखेंगे ना https जो लगा होता है ये, तो इसका मतलब इस वेबसाइट को एसएसएल सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ये वेबसाइट एक सिक्योर है हैकर्स के लिए। मतलब हैकर्स इस पे उसको हैक नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर ऐसी इस पे पेमेंट वगैरह होती है तो वो आपकी सेफ है मतलब। तो एसएसएल सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेबसाइट, जो आपको परचेज, जब आप वेबसाइट की होस्टिंग या आप डोमेन परचेज करते हैं तो आपको उसी समय लेना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको कोर्स के दौरान सब सीखने को मिलेंगे अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं, कि एक वेबसाइट की होस्टिंग कैसे परचेज करी जाती है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन या कंट्री लेवल डोमेन, मतलब आपको पूरा स्क्रैच टू एडवांस नॉलेज मिलेगी आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर, कि होस्टिंग को लेने के लिए आपको क्या क्या चीज पे फोकस करना चाहिए, ऐसा सर्टिफिकेट क्या होता है, उसको कैसे आपको लेना चाहिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, XML sitemap. So what exactly XML sitemap are? So XML sitemap एक फाइल होती है जिसमें हमारी वेबसाइट के सारे यूआरएल होते हैं। ठीक है,
किस लिए काम आता है एक्सएमएल साइट मैप हमारा? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए एक्सएमएल साइट मैप हमारी वेबसाइट का ना एक साइट मैप होता है। जैसे कि कोई घर बनता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो एक आर्किटेक्चर बनाता है, ठीक है? भाई अगर आपका एक कोई घर बना है, अगर कोई आपको बोले उसके अंदर कि आप एक बार घर को देख लीजिए, तो आप क्या करेंगे? अब घर के अंदर एंट्री करेंगे, एक-एक रूम देख के आएँगे, हर चीज़ उसका स्क्रॉल करेंगे या हर चीज़ देख के आएँगे। वो क्या होगा? वो आपका टाइम टेकन प्रोसेस है। अगर वहीं मैं आपको एक जगह बैठा के मैं आपको अपने घर का एक नक्शा या मैं आपको साइट मैप दिखा दूं कि ये एग्जैक्टली ये है, आपका आधे से भी ज्यादा टाइम बच जाएगा उसके अंदर। आपको विद इन अ मिनट समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये चीज है, वहां पे ये चीज है। तो साइट मैप जो होता है डेफिनेटली हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चरल डेटा होता है। हमारी वेबसाइट के सारे यूआरएल होते हैं उस फाइल के अंदर। पेज का यूआरएल, पोस्ट का यूआरएल, आपके होम पेज का यूआरएल, कॉन्टेक्ट पेज का यूआरएल होता है, जिससे कि आप क्रोलर को ये बता सकते हैं या क्रोलर को आप सबमिट करते हैं अपना साइट मैप, जिससे क्या होता है? क्रोलर आपकी वेबसाइट को बहुत फास्ट क्रोल कर लेता है। भाई अगर आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप नहीं सबमिट करते हैं तो उसमें क्या होता है? क्रोलर आपकी वेबसाइट को नॉर्मली एक क्रोल करेगा, होम पेज पे जाएगा, उसे क्रोल करेगा, फिर सेकंड पेज पे जाएगा। बट उसी के बजाय अगर आप एक साइट मैप सबमिट कर देते हैं क्रोलर को अपने को कि भाई ये मेरी वेबसाइट के 200 यूआरएल्स हैं और आप सबमिट कर देते हैं साइट मैप, तो उसमें क्या होता है कि बहुत इजीली क्रोलर उसे नेविगेट कर पाता है होम पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज के यूआरएल के अंदर जा जाके फास्ट फास्ट, सो दैट अब जितने फास्ट आपके पेज क्रोल होंगे उतने ही जल्दी आपकी वेबसाइट रैंक होगी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर। बिकॉज क्रोलिंग बहुत मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्रोलिंग पेज रैंक नहीं हो सकते हैं। तो साइट मैप एक बहुत यूजफुल चीज है क्रोल कराने के लिए आपकी वेबसाइट को, ठीक है? अब ये साइट मैप कैसे फैच करते हैं, हम कहाँ पे जाके इसे पेस्ट करते हैं, बॉडी के अंदर या हेडर के अंदर जाके, या प्लगइन के थ्रू हम कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर अपने अंदर, वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा कोर्स के अंदर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं लोकल एसईओ के बारे में। लोकल एसईओ क्या होता है, किस लिए यूजफुल होता है, किस लिए हमें करना चाहिए ये? So local SEO is the process of optimizing a website or a business to improve its visibility in local search result, specifically when users search for business product or services in a specific area. Local SEO aims to increase a website business chances of being found by local customer, particularly those who are ready to make a purchase or visit a physical location. Local SEO is very important for your business. अगर आपका कोई बिजनेस है जिसकी रीच आप चाहते हैं कि मेरी जो रीच है या मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे लोकल एरिया तक ही लिमिटेड है, आपका जो ऐसा आपका बिजनेस ऐसा है कि नहीं उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, या फिर आपका बिजनेस की डिलीवरी जो है वो काफी दूर तक किसी दूसरे स्टेट में नहीं है या कंट्री वाइड नहीं है, आपका एक लोकल बिजनेस है आपका कि भाई आई एम स्टेइंग इन दिल्ली और दिल्ली के अंदर मैं सिर्फ विद इन 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर में स्पेसिफिकली अपना सर्विस दे सकता हूँ, तो इसके लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती है हमारी, या उसे कह सकते हैं कि आप लोकल एसईओ बोलते हैं उसे हम। हमें अपने बिजनेस की एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, जो डिजिटल एज इंस्टीट्यूट का एक चैनल है हमारे यूट्यूब पे, उस पे आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज भी ऑलरेडी मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि आप एक गूगल लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे रैंक कैसे करा सकते हैं अगर आपको कोई बिजनेस है। आप सिर्फ लोकल एसईओ करके भी अपने आप को एक फ्रीलांसर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं अगर आपको एक लोकल एसईओ करना आता है कोई अच्छे से। सो मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लोकल एसईओ जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें क्रिएट करना चाहिए और क्या यूजफुल है हमारा ये, ठीक है? सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर में कि आप गूगल पे जाके अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने मतलब आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है विद गुड टाइटल, विद डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है अपनी सर्विस के बारे में, आपको वहां पे मेंशन करना पड़ता है हर चीजें, आपकी फोटोज, वीडियोज, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप वहां पे नियर मी वाले कीवर्ड्स पुट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस है रेस्टोरेंट का तो रेस्टोरेंट नियर मी या फूड नियर मी या बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, इस तरह के कीवर्ड आप पुट ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लोकल लिस्टिंग को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा लोकल एसईओ के ऊपर अपने, ठीक है? सो ये सब चीजें आप सब चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी आप एक गूगल बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इन डेप्थ नॉलेज के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी, उसके अंदर ट्यूटोरियल पूरा है आपका, जिसमें कि आप एक गूगल लिस्टिंग कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट उसमें डेप्थ नॉलेज दी है कि एक्चुअली लिस्टिंग होती क्या है, लिस्टिंग किस लिए काम आती है,
बिजनेस पे आप वॉक इन ट्रैफिक कैसे उसके थ्रू रन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं लोकल एसईओ के थ्रू आप, ठीक है। और लिस्टिंग आप बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आपको पुट करनी चाहिए, किस तरह के कीवर्ड आपको उसके अंदर मेंशन करनी चाहिए, और ये सब चीजें की आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कोर्स के अंदर। अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं अपने आप को, तो और इन डेप्थ नॉलेज आपको प्रैक्टिकली मिलेगी कि आप कैसे एक लिस्टिंग क्रिएट करके आप एक लिस्टिंग क्रिएट करके अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर आप अपने खुद की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, और आप एक फ्रीलांसर या किसी इंडस्ट्री के लिए आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। So thank you so much guys for the listening. Over to you, Mr. Rajesh. Yeah, thank you, Jitendra, for the nice presentation. And we'll open for the Q&A session. So you may type your questions in the chat box, and you can also raise your hand. We can take the question directly. So we have question from Dhani M. Dhani, you can unmute yourself and ask your question. Okay, there question from Das. How to start SEO project? So Jitendra, can you answer this? हाँ जी। अगर आप एसईओ प्रोजेक्ट, पहले तो मैं जानना चाहूंगा आप एसईओ में एग्जैक्टली कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए एसईओ में काफी सारे प्रोजेक्ट होते हैं कि आप लोकल एसईओ करना चाहते हैं, ऑन पेज, या किस तरह का प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं मिस्टर दास। सो इफ यू कैन प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन आंसर बेटर कि आप एग्जैक्टली एसईओ के प्रोजेक्ट में आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आप। अगला क्वेश्चन है खुशी सागर अमिटी, फी स्ट्रक्चर ऑफ योर कोर्स। तो खुशी आपको डिटेल्स पिन कर देते हैं दोबारा से एक बार, या फिर आप इससे ऊपर देखिए आपको पिन की हुई है हमारी डिटेल्स। टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड टेक डाउन, और यू कैन टेक डाउन आवर नंबर इन द चैट बॉक्स एंड वी विल कांटेक्ट यू डायरेक्टली फॉर फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसी संकला का, व्हाट इज एसईओ ऑडिट। सो एसईओ ऑडिट इज बेसिकली ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट। इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट की जो वीकनेस है या फिर अपनी वेबसाइट की स्ट्रेंथ वो पता कर सकते हैं आप ऐसी ऑडिट के थ्रू, कि आपको अपनी वेबसाइट पे क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आपकी वेबसाइट में क्या क्या कमी है जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक होने से रोक रही है, ठीक है। इसके लिए काफी सारे टूल्स आते हैं मानसी, फ्री टूल्स भी अवेलेबल होते हैं और पेड टूल्स भी इसके लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कि आप गूगल से इजीली सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट ऑडिट टूल्स, ठीक है। इसमें आपको अपनी वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज या आपके ऑन पेज के इश्यूज कि आपको क्या करना चाहिए, कीवर्ड्स कौन से आपको यूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो आप इसमें ऑडिट कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट। अगला क्वेश्चन है Nidhi, हाँ she is again asking for the course fees. So Nidhi will contact you and will let you know everything, because we want to understand, हम पहले समझना चाहते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से हम आपको, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। एग्जैक्टली और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, ताकि हमारी टीम आपसे इमीडिएटली कनेक्ट कर ले। मिस्टर दास जलका का रिप्लाई आया है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज बोथ। सो मिस्टर दास आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार पहले टीम से कांटेक्ट करें, बिकॉज इसके लिए मुझे एक बार आपसे बात करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आप स्टार्ट ऑन पेज भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपने खुद के बिजनेस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। So I would request you to please share your contact number so that we can get in touch with you, और हम आपको सजेस्ट कर सकें कि आप मैं आपको थोड़ा समझ सकूं कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं ऑन पेज ऑफ पेज के अंदर, कि आप वेबसाइट के लिए चाह रहे हैं, या फिर आप एक फ्रीलांसिंग के लिए चाह रहे हैं, या फिर आप एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं आप, ठीक है। तो आप या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना आप कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, आपसे इंस्टेंटली आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। You can take down the number. It's 844-747-0220. It's written down in the chat box. There's Next a question from question है Bars24 Music. Bars24 Music, what is grey hat? So grey hat SEO is basically एक आपका ना एल्गोरिथम होता है जिसमें कि आपके 3 टाइप की टेक्निक्स होती हैं, ग्रे हैट, व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट। देखिए मिस्टर बार, इसमें क्या होता है, आई डोंट नो योर नेम। सो ग्रे हैट बेसिकली क्या होता है कि ऐसी टेक्निक्स जिसमें कि आप कुछ व्हाइट हैट कर रहे हैं और थोड़ा सा ब्लैक हैट का हेल्प कर रहे हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, गूगल का एल्गोरिथम है कि आपको एक वेबसाइट का जो ब्लॉग है वो आपको लिखना है 1000 वर्ड का। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको
कि आपको एक पोस्ट लिखना है आपको 1000 वर्ड का, और उसको आप, ये एक सिर्फ एग्जांपल है, इसको आप एक बार उसमें मत लीजिएगा, एक एग्जांपल दिया है थोड़ा सिंपल समझाने के लिए आपको, और आप उस कंटेंट को लिख रहे हैं 1200 वर्ड का, ठीक है, 1200 का या 1100 या 1300 कीवर्ड का लिख रहे हैं उसको आप, तो एक लिमिटेशन होती है, जैसे कि अगर व्हाइट हैट में आपसे कहा गया है कि 1000 वर्ड या 800 वर्ड तक आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन आप उसे 1200 वर्ड तक रीच कर रहे हैं उसे आप, ठीक है, तो वो आपका ग्रे हैट कहलाएगा। और अगर आप उससे ऊपर जाते हैं 1500 वर्ड या उससे भी आप लिमिट रीच करते हैं, तो वो आपका ब्लैक हैट बन जाएगा। तो बेसिकली व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ के बीच में जो काम करते हैं आप उसे हम ग्रे हैट एसईओ बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मतलब एन नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं जो आपको कोर्स में जानने को मिलेंगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार कांटेक्ट करें नंबर्स पे, सो दैट आपको इसके बारे में थोड़ा मैं इन डेप्थ नॉलेज दे सकूं इस चीज के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली ग्रे हैट एसईओ इज। ठीक है, प्रेम रामालिंगम, has sir, last 7 years I worked in another domain. Now I completed SEO course. Is this correct time to start the career? Definitely, Mr. Prem Ramalingam, this is the right time to start your career in digital marketing, या फिर you can say you can start your career in SEO as well. ठीक है, सो आप एग्जैक्टली अब मतलब हमसे क्या हेल्प चाहते हैं वो डेफिनेटली थोड़ा सा बताएंगे, आप ब्रीफ करेंगे इसके बारे में, या फिर आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा प्लीज हमारी टीम से एक बार, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझसे एक बार डायरेक्टली वन ऑन वन मैं आपसे मीट पे बात कर लूंगा कि एग्जैक्टली आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको क्या गाइडेंस चाहिए, उसमें मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टर विशाल श्रीवास्तव, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड बैकलिंक डिफरेंस। सो मिस्टर विशाल, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, देखिए डिफरेंस कोई मेजर नहीं है, बिकॉज बैकलिंक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिंक, मतलब हाइपर लिंक ही होते हैं आपके जो आप किसी और की वेबसाइट पे क्रिएट करते हैं। इंटरनल लिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं या 10 आपके पोस्ट हैं, आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे लिंक लगा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, क्योंकि आप इंटरनली गेम खेल रहे हैं उसके साथ वेबसाइट के अंदर, एक पेज से दूसरे पेज पे। ठीक है, अगला आ जाता है आपका एक्सटर्नल लिंकिंग। देखिए एक्सटर्नल लिंक में क्या होता है, आपके किसी फ्रेंड की वेबसाइट है या फिर आपके किसी दूसरे किसी यूजर की वेबसाइट है, अगर वो यूजर आपसे बोलता है, आपसे कुछ आपको पे करता है कि भाई आपकी वेबसाइट पे काफी अच्छा ट्रैफिक है, आप अपनी वेबसाइट पे मेरा एक लिंक इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है, तो आप उसकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर देंगे, तो वहां से एक एक्सटर्नल यूआरएल जाएगा आपके, मतलब आपके पास एक क्रोलर आएगा, तो आपके वेबसाइट के थ्रू क्रोलर उनकी वेबसाइट पे जाएगा, तो अपनी वेबसाइट पे किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाना, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, बैकलिंकिंग इज ऑल्सो विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने लिंक्स क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड बैकलिंकिंग। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल लिंक है ना, वो एक तरह से आपके लिए तो एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन जो दो यूजर है उसके लिए वो कहीं ना कहीं बैकलिंक कहलाएगा। भाई सपोज कोई यूजर ए ने अपनी वेबसाइट पे यूजर बी का लिंक लगाया, तो यूजर बी के लिए वो बैकलिंक है, क्योंकि वो ए से बी पे आ रहा है तो उसके लिए बैकलिंक है, लेकिन यूजर ए के लिए वो एक एक्सटर्नल लिंक होता है। ठीक है, सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज के लिए, कि अगर आप एग्जैक्टली एसईओ के बारे में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, फिर एसईओ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मिस्टर दीपांशु तिवारी, हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑन गूगल रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एज एसईओ, हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑन गूगल रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ। सो मिस्टर दीपांशु, देखिए अगर आप थोड़ा सा मैं एक बार कंफ्यूज इसमें, हाउ टू फाइंड, सो एग्जैक्टली आप इसमें जानना क्या चाहते हैं, मतलब आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के बारे में, आप या आप अपनी वेबसाइट पे लिखना चाह रहे हैं? दीपांशु थोड़ा सा एक बार मुझे ब्रीफ करेंगे, थोड़ा समझ में आएगा मुझे। आप जैसे पूछ रहे हैं ना कि हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखना चाह रहे हैं, पोस्ट लिखना चाहते हैं, और एसईओ के बारे में आप वो जानना चाहते हैं, प्लीज एक बार थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए मुझे एक बार क्वेश्चन में, सो दैट मैं उसका आंसर कर सकूं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर अरशद कमाल का, if my local business SEO get suspended, so how can I resolve it? So Mr. Arshad, अगर आपका लोकल लिस्टिंग या गूगल लिस्टिंग आपकी सस्पेंड हो गई है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए गूगल सपोर्ट से बात कर सकते हैं। सो googlesuppport.com पे जाके आप वहां पे पहले अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है, कि माय बिजनेस लिस्टिंग गॉट सस्पेंडेड, ठीक है,
मैं आपको इसका बेटर तो आंसर मैं आपको दे पाता अगर आप मुझसे कनेक्ट करते, बिकॉज लिस्टिंग को रिसस्पेंड कराना बहुत इजी है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर मैं आपसे आंसर भी करूं तो सिंपल आप एक काम कर लीजिए, आप गूगल सपोर्ट पे जाके ना उस पे जब आप अपनी क्वेरी का मेल लिखेंगे या उनको आप अपना रिजोल्यूशन मतलब अपनी तरफ से उनको बताएंगे, तो वहां पे आप अपना कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका विजिटिंग कार्ड, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर आपकी शॉप के जो बाहर का फोटो होता है विद होर्डिंग, वो आप उन्हें फोटो भेज सकते हैं, उसके बाद उन्हें लिख सकते हैं, रिराइट कर सकते हैं, आपकी बिजनेस लिस्टिंग उससे डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। Yeah. And also, Mr. Arshad, you can contact our team also at the Prime for IT services. एग्जैक्टली We can help you in that. एग्जैक्टली। सो अरशद, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टेक्ट विद आवर टीम, क्योंकि लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली एक बार आपको बात करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आपके साथ इशू क्या है, सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम से दिक्कत ना आए, वो आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा उस चीज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इज मिस्टर विशाल श्रीवास्तव। सेम क्वेश्चन मिस्टर विशाल, मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया था आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसी संगला, थैंक यू सो मच मानसी। Prem Ramalingam, please say English. I am from Tamil Nadu. Mr. Prem Ramalingam, what is your question? Yes, has I complete SEO course? Is this a correct time to start? So, Mr. Prem Ramalingam, as I already told you that yes, you can start your career in SEO industry. For that, you need to contact our team so that we can understand your requirement, what exactly you would like to proceed with. Okay, so request you to please contact our team once so that we can help you in this scenario. Mr. Vishal Srivastav, Nidhi Pandey. Okay, thank you so much, Nidhi. Vishal Srivastav, again, same question. Mr. Vishal, I would request you to please contact with our team so that we can better answer you for this query. Das Jalka, okay, sure, I'll call you. Yeah, sure. Vishal Srivastava, Mayank Singh. What is toe tire link? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन मिस्टर मयंक। मुझे डेफिनेट अभी मेरे को पहली बार ये वर्ड सुनने को मिला, टो टायर लिंक, तो मैंने भी डेफिनेटली नहीं सुना अभी तक ये कि टो टायर लिंक। It's two tire link. He's trying to. टू टायर लिंक, सर टू टायर लिंक इज आल्सो नॉट, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ लिंक, टू टायर लिंक तो आई हैव नेवर। मिस्टर सचिन, इफ यू वुड लाइक टू आंसर, कुछ आपको इसके बारे में कुछ आइडिया हो? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनिका एम्बारे, एसईओ एआई टूल्स नेम। सो मोनिका, वुड लाइक टू टेल यू कि एसईओ के कुछ एआई टूल्स होते हैं विच इज नॉट फ्री। सो कुछ फ्री टूल्स हैं जैसे कि आप यस मिस्टर जितेंद्र, एक बार रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? यस, सो मिस्टर मयंक इज आस्किंग कि व्हाट इज टो टायर लिंक, सो इज देयर एनी काइंड ऑफ लिंक? ओके, एक्चुअली लिंक बिल्डिंग जो होती है आपकी, वो 1 वे होती है, 2 वे होती है और 3 वे होती है। ठीक है, तो 1 वे में क्या करते हैं, जैसे आपने आपका एक abc.com डोमेन है और उसमें आपने किसी भी एक अदर वेबसाइट XYZ के ऊपर आपने अपना लिंक लगा दिया, वो 1 वे में काउंट होता है आपका। आप तो टू टायर बोल रहे हैं या 2 वे लिंक बिल्डिंग बोल रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, लिंक एक्सचेंज करते हैं। जैसे abc.com एक वेबसाइट है और xyz.com है, दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं लिंक्स को। ABC ने अपनी वेबसाइट का लिंक XYZ के ऊपर लगा दिया और XYZ ने अपनी वेबसाइट का लिंक ABC के ऊपर लगा दिया, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लिंक भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो वो 2 वे लिंक बिल्डिंग में आता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपका आंसर। ओके, मतलब यू कैन से ये बेसिकली हमारा प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में भी आ सकता है चीज हमारा, ये कहीं ना कहीं। हाँ मतलब ठीक है, ओके। सो मोनिका तांबरे का मैं आंसर कर रहा था कि SIAI टूल्स नेम। सो मोनिका, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा जैसे कि चैट जीपीटी इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर कंटेंट क्रिएशन, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप एसईओ में हेल्प ले सकते हैं, बट दीज आर पेड टूल्स। फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट आवर टीम। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए टूल्स के बारे में, तो डेफिनेटली आपको एक बार टीम से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके अंदर। Vishal Srivastava, again same question. I would request you to please contact our team, Mr. Vishal. Das Jhalka, freelancer. Definitely, Mr. Das, आप freelancing project भी pick कर सकते हैं after completing this SEO course या फिर after completing your digital marketing. Okay. Hamid Nazar, is it AI effect? Is it AI effect this industry?
I don't understand Yeah, your. the question is like, will the AI affect the industry? I think his question is that AI का कोई फर्क पड़ेगा? So yes, Hamid, AI is going to change the entire industry because AI is working a lot. And without AI in the next few years, you are not supposed to be existing in this industry. So AI बहुत important है इस इंडस्ट्री के लिए, और अभी हम AI के नेसेंट स्टेज में हैं, बहुत अर्ली स्टेज में है। अभी हम जब AGI के लेवल पे एंटर करेंगे तो सारी इंडस्ट्री ही चेंज हो जाएगी, और आपको AI नहीं आता है, then you cannot just survive in the industry. Okay. Next, Mr. Bars 24 Music. I use a gray hat, but my snippet doesn't get made quickly. How to make a snippet? So, Mr. Sachin, if you would like to answer this question, please. I use a gray hat, but my snippet doesn't get made quickly. How to make a snippet? So, Mr. Bars 24 का क्वेश्चन है कि वो ग्रे हैट एसईओ का यूज कर रहे हैं स्निपेट के लिए, बट हाँ जी। देखो स्निपेट और ग्रे हेड से ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका, स्निपेट्स अलग होते हैं आपके, और ग्रे हेड या व्हाइट हेड ऐसी जो टेक्निक्स है वो अलग है आपका, डिफरेंट है, इट इज डिफरेंट, ठीक है। तो स्निपेट्स, रिच स्निपेट्स आते हैं बेसिकली अलग अलग टाइप्स के, कि आप गूगल के सर्च इंजन में एसईआरपी में क्या किस टाइप का स्निपेट्स आप दिखाना चाहते हो। जैसे आपका रेटिंग है, रेटिंग रिव्यूज आप दिखाना चाहते हैं स्निपेट्स के अंदर, या फिर आपको कोई सपोज एक वीडियो है या आपकी कंपनी है, मेरा इंस्टीट्यूट है, मुझे डिटेल्स दिखानी है, कोई यूजर अगर सर्च करता है मेरी वेबसाइट तो मेरी डिटेल्स भी वहाँ पर आ जाए, या मेरा डिजिटल इंस्टीट्यूट सर्च करता है तो मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, या मेरा कितने स्टूडेंट्स यहाँ से कंप्लीट किए, तो वो स्निपेट्स होता है, स्निपेट्स। तो इसका ग्रे हेड एसईओ या ब्लैक हेड एसईओ या व्हाइट हेड एसईओ से कोई इतना मतलब नहीं होता। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसका कोड होता है रिच स्निपेट्स का, जो अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं, या प्लगइन से भी आप वर्डप्रेस के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशी सागर एमएटी, एसईओ रिक्वायर एनी कोडिंग? नो खुशी, एसईओ के लिए किसी भी कोडिंग की ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिना कोडिंग के भी एसईओ सीख सकते हैं और अपना करियर आप एसईओ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग में ही आपको ऐसा कुछ कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना कोडिंग के आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और अपना करियर आप डिजिटल मार्केटिंग में बिल्ड कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। हामिद नाजर, ओके, मगनू झा, AI affected marketing career? So Mr. राजेश ने अभी इसका आंसर किया है कि does AI affect on marketing career? So आपको डेफिनेटली AI का टूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए मिस्टर मगनू। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के साथ तरफ अपना करियर फोकस कर रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं उसके तरफ, तो डेफिनेटली आपको AI के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में AI का बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। Am I right, मिस्टर राजेश? Of course, AI is the core of any industry nowadays. साक्षी गुजर, व्हाट इज लिंक जूस? सो साक्षी, अभी जैसे कि मैंने बताया था, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी का नाम लिया था मैंने। क्या होता है, सपोज एक वेबसाइट है, वेबसाइट ए, इंटरेस्ट ले लीजिए। उस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी का स्कोर होता है एक, मतलब हर वेबसाइट का एक अथॉरिटी स्कोर होता है जो कि 0 to 100 में काउंट किया जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर वेबसाइट के ऊपर एक क्रोलर आता है, ठीक है, क्रोलिंग करता है। अगर आप उस वेबसाइट पे अपना कोई भी लिंक मेंशन कर रहे हैं, बैकलिंक बना रहे हैं, तो क्रोलर जो है उस वेबसाइट पे जैसे क्रोल करेगा और उसे वहां पे अगर आपका लिंक मिलता है तो वो उस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब क्रोलर आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो वो क्रोलर उस वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है, उसको, डोमेन अथॉरिटी है उसका जो लिंक जूस है, उसे लेके आपकी वेबसाइट पे आता है। तो लिंक जूस इज बेसिकली एन अथॉरिटी, सो यू कैन से, सो ठीक है। सो लिंक जूस आपका डोमेन अथॉरिटी होती है। प्रेम रामलिंगम, थैंक यू सर, या थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेम। मलंग, सम एसईओ टूल्स। सो मिस्टर मलंग, मुझे ये बताइए प्लीज आप कि एसईओ में बहुत सारे टूल्स होते हैं, ऑडिट का टूल्स है, कीवर्ड्स के टूल हैं, कंटेंट का टूल्स हैं, बहुत सारे टूल होते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कॉन्टेक्ट योर टीम सो दैट आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकें, और आप एग्जैक्टली आप बताएंगे अगर मुझे कि मुझे ये टूल की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि हम समझ सके और मैं आपको टूल की गाइडेंस दे सकूं इस चीज के बारे में, ठीक है। सो आप प्लीज एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ, और आप मुझसे डायरेक्टली, उनके बाद फिर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं आप। निधि पांडे, व्हाट इज मोबाइल फ्रेंडलीनेस? सो निधि, मोबाइल फ्रेंडलीनेस इज समथिंग, आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि गूगल की एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, गूगल की एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग गूगल कहता है कि
जो वेबसाइट मोबाइल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब जिनका जो अपीयरेंस है मोबाइल पे बहुत अच्छा होता है या बहुत फास्ट लोडिंग होती है, उन वेबसाइट को गूगल SERP पे रैंकिंग देता है, मतलब फर्स्ट रैंकिंग देने में हेल्प करता है उन्हें। तो ऐसी जो वेबसाइट मोबाइल पे अच्छे से ओपन होती हैं, उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, जो अच्छे से परफॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड मोबाइल फ्रेंडलीनेस वेबसाइट। और कोर्स के दौरान आपको ये सिखाया जाता है कि जब आप एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे कोर्स में, तो आप उस वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप उसके साथ। ठीक है। हामिद नजर इज इट इज द प्रोसेस towards mobile for a site. It is the process towards mobile for a site. It is the response towards Response. mobile Okay, web. okay. It is the response. I think ये answer Hamid कर is रहे हैं answering Mr. the question. Yeah. Right, right. Hamid is answering someone's question here. So, Mr. Das Jalka sir, where are you from? सो मिस्टर दास, इसमें तो डेफिनेटली देखिए, आपको अगर कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन लेनी है तो डेफिनेटली, अगर आपको ऑफलाइन पता करना है तो नोएडा सेक्टर 62 आइथम टावर में आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, और आपको एड्रेस हम कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे आपको अभी। सो अगर आप अपना ऑफलाइन कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल एज से, ठीक है। सो आई थिंक हमारा हेड ऑफिस नोएडा है, दिल्ली NCR में। अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस और कोर्स, हम ऑनलाइन भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने बताया था जैसे स्टार्टिंग में कि वी हैव वेरी गुड ऑनलाइन प्रोग्राम। और एग्जैक्टली इफ यू वांट सम सर्विसेज फ्रॉम अस, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और आप अगर कोई रिक्वायरमेंट है, वी कैन गाइड यू एंड हेल्प यू आल्सो। एग्जैक्टली। Bars 24, I work on QuickBooks or Enterprise and Payroll desktop keyword, but my snippet doesn't get made daily quickly. I wonder how can I make it daily? So, Mr. Sachin, if you would like to answer this question, please. I work on QuickBooks and हाँ जी। का क्वेश्चन है, आई वर्क ऑन QuickBooks Enterprises and Payroll desktop keywords, but my snippet does not get made daily quickly. Wonder how I can make it daily. देखो, ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपके, जो आप चाह रहे हैं कि मेरी स्निपेट्स वहां पर शो हो जाए गूगल के सर्च स्निपेट्स के अंदर। तो QuickBooks तो एक टाइप का कंटेंट हो गया आपका, ठीक है, एक टैक्स सपोर्ट कंटेंट है ये। तो इसमें कभी कभी बेसिकली होता भी है और नहीं भी होता है इसमें शो, बट ये डिपेंड करता है जो आप पैराग्राफ लिखते हैं ना, वो पैराग्राफ कितना अच्छा लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ये स्निपेट्स के अंदर डेटा आपका गूगल ऑटोमेटिकली उठाता है। उसमें आप मैनुअली कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर इसके। So next question of Mr. Malang. So some SEO tools to search keywords and analyze. So Mr. Malang, देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, टूल्स होते हैं, पेड टूल्स भी हैं, फ्री टूल्स हैं। आप कुछ कीवर्ड टूल्स आप यूज कर सकते हैं, लाइक सेमरश है, Ahref है, मोज है, या गूगल कीवर्ड पैनल भी आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स के लिए। और बाकी एडवांस टूल्स के लिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कॉन्टेक्ट आवर टीम सो दैट वी कैन हेल्प यू बेटर इन दिस सिनेरियो, ठीक है। अदरवाइज आप ये फ्री टूल्स यूज कर सकते हैं, बट ये क्या लिमिटेड सर्चेस ही मिलेंगे इसके अंदर आपको। एडवांस सर्चेस के लिए आप एक बार कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसके बारे में। दीपांशु तिवारी, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कैसे सर्च कर सकते हैं? सो देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करने के लिए आप दीपांशु, गूगल सर्च इंजन इज द बेस्ट, मतलब बेस्ट टूल एवर, जिसपे आप, जिसमें कि आप गूगल सर्च पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो आपको सबसे गूगल के लास्ट पेज पे आपको ट्रेंडिंग या LSI कीवर्ड्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। या गूगल ट्रेंड्स में जाके भी आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप टॉपिक सर्च कर सकते हैं, कुछ भी आप, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगर आप गूगल के ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी और प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज गूगल ट्रेंड्स इज दी ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप गूगल के ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च कर सकते हैं, ठीक है। Malang, some SEO tools. So again, Mr. Malang, as I told you कि SEO में आप exactly कौन से टूल के बारे में बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए हेल्प की जाएगी अगर आप बता सकें कि, तो आप एक बार प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा टीम के साथ, सो दैट मैं उसमें आपको हेल्प कर सकूं। Arshad Kamal, sure sir. Anju, but use of schema is in SEO. So Anju, use of schema in SEO, basically SEO is a part of on-page SEO. Schema से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को कुछ रिच स्निपेट्स मिलते हैं, आपकी वेबसाइट थोड़ी बेटर लगती है सर्च इंजन पे देखने में। इससे अगर सबसे बड़ी मेन बात करूं तो देखिए, स्कीमा की हेल्प से आपकी वेबसाइट को सबसे अच्छी तो रैंकिंग मिलती है आपको,
आप ना SCRP पे आपको रैंकिंग में बहुत हेल्प मिलती है अगर आप स्कीमा लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे। वो स्कीमा कैसे लगाते हैं वो डेफिनेटली आपको कोर्स में सिखाया जाएगा आपको कि आप HTML का स्कीमा या फिर आप प्लगइन के थ्रू कैसे स्कीमा लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। बाकी स्कीमा का बहुत बड़ा रोल है अगर आप अपना ऑन पेज इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर अपने सर्च इंजन पे अपने आप को रैंक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए स्कीमा काम आता है। Next, Mr. Das Jalka, for trending topic, you can go to Google Trend. It will very helpful for you. Okay. Arshad Kamal, may we get any type of certificate for this class today? Yes, Mr. Arshad, you will get a certificate for after this class. आपको मिल जाएगा certificate definitely. Next, Abhishek Chug, sir, will we get certificate for today's? Yes, Mr. Abhishek, you will get a certificate. Monica Tamre, okay, sure. Thank you, Monica. So just I'm interrupting Jitendra. We are running short of time, so we have next 5 minutes only to wrap up the session. So please answer quickly. Otherwise, you can contact us. We are sharing our details so that you can contact us. Our team will also try to contact you. Meanwhile, you can just take 2-3 questions quickly. Yeah, sure. मिस्टर मनोज जे पोरवल, किसी भी पेज को रैंक कराने के लिए कंटेंट रिसर्च कैसे करें, बेटर कंटेंट लिखें? सो मिस्टर मनोज, इट इज नॉट दैट मच इजी कि मैं आपको यहाँ पे उसका आंसर कर पाऊँ कि आप कंटेंट कैसे रिसर्च कर सकते हैं, बट यस, यू कैन यूज सम टूल्स, यू कैन यूज चैट जीपीटी, बट कंटेंट इज नॉट हेल्पफुल विदाउट द कीवर्ड्स। तो सबसे पहले होती है आपकी कीवर्ड रिसर्च। सो मिस्टर मनोज, कीवर्ड के बिना कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। कीवर्ड आपको यूज करने पड़ते हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड क्या चल रहे हैं मार्केट में, उन कीवर्ड्स के लिए कौन कौन से टूल आपको यूज करने चाहिए, ये आपको कोर्स में सीखने को मिलेगा। सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कॉन्टैक्ट आवर टीम सो दैट मैं आपका मतलब रिक्वायरमेंट समझ सकूं कि आप एग्जैक्टली एसईओ में क्या करना चाहते हैं या फिर आप किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको गाइडेंस दे सकूं आगे चल के, ठीक है। सो मिस्टर मनोज, आई थिंक आपको आंसर मिला होगा इसका, और आप एक बार प्लीज कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बेटर हेल्प कर पाऊंगा आपके इस क्वेश्चन के साथ। Next, Nidhi Pandey, thank you, Jitendra Singh, thank you so much, Nidhi. Abhishek, will we get, yes, Manoj, used for WordPress. Manoj, yes, used for WordPress. तो definitely आप Yoast SEO देखिए एक plugin है। So Mr. Manoj, again, जैसे कि मुझे ये आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा अभी कि कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप प्लीज एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपके क्वेश्चन के साथ, आपकी एग्जैक्टली क्या क्वेरी है, ठीक है। सो आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार आप टीम से कांटेक्ट कीजिएगा। गाइस, अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन पेंडिंग है, आपका कोई और डाउट है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज। Question from Abhishek. Can you share your LinkedIn? Yeah, we will share you the LinkedIn profiles. Let's see. And any more question? I don't think there are questions from the people. So we can wrap it up. So thank you all for being present here. It was a wonderful session, Mr. Jiten, Mr. Sachin, and you all have made this very lively and interactive session. And we hope that we will discuss it further. And if we have shared our LinkedIn details, you can take it from the message box. And if you have any query, you can contact us. The number or the email ID is given here. And Magnu, Didi is. Can we come to your office? Yes, you can come to you are in Noida. Anytime you can come to our office. Just prior to that, please inform our team so that if they will try to make it available. And thank you so much again for spending time on this Sunday, and have a nice day ahead. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much. बात करें इस डैशबोर्ड की, तो इस डैशबोर्ड के एड्स मैनेजर डैशबोर्ड के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी दिखती है। मुझे लीड जनरेट करना है अपनी कंपनी के लिए, अपने वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए